So in last lecture we have learned regarding this architecture. We have seen a different blocks, and at last we have seen a flag register. And I told you to do just self study for the overflow flag and all. I hope you have done it. Okay. Today we will see some features of 8086. We have just listed the features in earlier lectures. Now today we are going to see some features in detail. Okay. So first, in that the first is that memory segmentation. Okay. So this is the feature we will see today. Now try to understand. These are the actually what is the topic wise they are small but funda wise yes there are potential one. Okay. So memory segmentation means what? What I told last time by just naming this particular feature. Memory segmentation means dividing the memory logically in different parts. Are you getting it? Okay. So if I talk regarding the memory, how much memory is interface with the 886? How much memory we can interface? 1 MB. Yeah, 1 MB. Okay. So 1 MB of memory, try to understand. Let's suppose 1 MB of memory, which actually going from address 0000000 to the FFFH. Fine. Now what is happening? Try to understand memory segmentation means what. Now in this segmentation, we have to just virtually or logically divide this memory into 4 parts. Keep in mind, logical division is a different, physical division is different. Okay, let me give you some examples so that the things will be clear to you. It's just like, let's suppose, how shall I tell you? Yeah, let's suppose you want to assemble your PC. Getting it? You want to assemble your PC, and what you done is that you just went to the Lamington Road and you were just asking for different specification. मुझे ये processor चाहिए, ये वगैरह सब चाहिए. ठीक है, समझो सेगमेंटेशन क्या होता है और बैंकिंग क्या होता है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंस. लॉजिकल डिवीजन एंड फिजिकल डिवीजन मतलब क्या. ठीक है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दैट कि लेट्स सपोज आई वांट टू हैव लेट्स सपोज 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क. समझो, I want to have 1 TB of hard disk. That is my requirement. But when I search in the market, I saw that whatever available is just only 512 GB. 1 TB is out of stock. Okay. And still, if I want to have that 1 TB of hard disk, then what will I do? Then what to do? 512 GB 512 GB के ऐड करनी पड़ेगी. Okay, then what I will do is that okay, 1 TB is not available in fine. Then I will just purchase this two set, na 512 GB ka. Are you getting it? Okay, that 512 GB ka two set. Getting it? So this is called as memory banking. Means what? In memory banking, what we do is that 1 MB of memory is actually physically divided into two parts. If you see that actually 86 ka kit, you will get two different memory ICs. Okay, yes, here we can see that two different hard disks will be there. Likewise, two different memory ICs will be there, which is a 512 KB. 512 GB. Are you getting it? So this is called as memory banking. Actually dividing the memory in two parts. मतलब वो physically दो part में divide रहेगा. ठीक है? जैसे 1 TB of hard disk दो part में divide है. And what do you mean by memory segmentation? Means what? Now let's suppose मैंने PC लाया. In that I am having the good processors and all. 1 TB hard disk ऐसे divide है. Cabinet में let's suppose दोनों भी है CPU में. ठीक है? And now let's suppose if you just install Windows or something, what other operating system you want. Okay. Now, while installing that operating system, it asks for how many partition you want to make of that hard disk, right? Okay. So you just say like, I will just divide that hard disk into C drive, D drive, E drive, and let's suppose F drive. Okay. Division करते हो ना, partition करते हो ना, OS में while installing that Windows. Okay. Now, if you just if you are doing like this, if you are just installing or if you are just dividing the hard disk into this particular part, C, D, E, F. ठीक है, जो ड्राइव बनाते हो. ठीक है. Now this is called as segmentation. ये segmentation है. ठीक है. Means only just like now whenever I say the C drive, D drive, E drive and F drive, do we have it physically? हाँ, ये C drive होता है, ये D drive होता है, ये E drive, ये F drive है. ऐसा होता है क्या? Do we have it physically? No. No. So that is what the virtual, not virtual, actually logical division. Are you getting it? Okay. So this is called as a memory segmentation and this is called as memory banking. So segmentation means what? Virtually dividing memory into the different parts. मतलब एक्चुअल एक मेमोरी को लेकर तोड़ नहीं रहे अपन, उसके अंदर जस्ट डिफरेंट पार्ट बना रहे हैं. ठीक है. एंड इफ आई से मेमोरी बैंकिंग मींस फिजिकली वी आर हैविंग टू सेपरेट पार्ट.
Getting it? Okay. Now in memory segmentation, this is what we just talk in day-to-day life, that we do have C drive, D drive, वगैरह. Okay. But in 8086, the drives are like this one. Core segment, समझो अभी. इसके drive different है. Core segment, then data segment. Okay. Extra segment and stack segment. So these are the drives which we will be having on 8086 का memory. Getting it? ठीक है. अब guys, so that entire memory we want to divide in this 4 part. अभी समझो. ठीक है. ये 4 part में मुझे divide करना है. Getting it? ठीक है. So if I want to divide that entire 1 MB of memory in this 4 part, so each division must be of what size? What do you think? 64 1 MB को divide करना मुझे 4 part में. 64 होगा. 256. Yeah, try to understand, try to get feel of 64 कैसे हो बाद में देखेंगे. ठीक है. So if I want to divide that 1 MB into the 4 part, मतलब these are the 4 part which I want. So what I will do, let's suppose ये 1 TB है. कुछ तो let's suppose 1 TB नहीं पकड़ता, 40 GB पकड़ दे. And if I want to make the 4 part, so I can do like 10 GB, 10 GB, 10 GB, 10 GB. ठीक है. Likewise here, now so 1 MB of memory is available, and we want to divide into 4 logical part or 4 part. ठीक है. So each size of the segment is going to be the, if I just say practically, तो उसका size रहेगा 256 KB. ठीक है. So means what? I actually want to do this one 1 MB of memory. I just want to divide into 4 part, and each part will be of 256 KB. Are you getting it? Each part will be about 256 KB. Okay. But if I see actually in the memory, they do not divide like this one. They do not do the division like this one. They do like this one, that 1 MB, they just divide the 16 part, and each part will be of 64 KB. So if I just multiply, I will be getting 1 MB back. Are you getting it? Okay. So actual में it is needed that we require 4 segment only. We require only core segment, data segment, extra stack segment. But instead of doing that, instead of dividing that 1 MB of memory into the 4 part of 256 KB each, what do we do is that we just divide into the 16 part. Not 4 part, we just divide into 16 part. Now, can anybody tell me why do we go for a 16 part, why not for a 4 part? This is what obvious one. मतलब just by looking at it, we just say that 4 part में divide कर एक 256 KB का बनेगा खत्म. But actually में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किया है. If you see actually ना, the thing is like that 1 MB of memory is divided into this many parts, 16 into 64 KB. मतलब each part will be of 64 KB. Now why do we go for this one? Can anyone tell me? 16 bit का है. क्या 16 bit का है? Segments, every code segment, data segment. 16 bit का है. Okay, ठीक है. Anyone else want to try? ये फंडा से एक्चुअली जो आपको पता होने चाहिए. अभी मतलब जस्ट मुझे थियरी कवर करना तो फटाफट कवर कर लेता, बट कांसेप्ट्स है उसके पीछे दैट यू मस्ट नो. ठीक है. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वन वी हैव टू डू लाइक दिस वन 16 into 64. अब ये क्यों समझो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. क्यों ऐसा करते हैं? इट जस्ट बिकॉज नाउ एज आई टोल्ड, फिजिकल एड्रेस कैसे बनता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फिजिकल एड्रेस? Base address into 10H. Base address into 10H plus offset address. That is what the formula. ठीक है. अभी होता कैसे, that we have seen, to access each and every segment. Let's suppose if I take core segment, this is the part of memory. ठीक है. We require 2 register. ठीक है. इसके लिए CS है और एक IP है. To access any segment or to access any part of the memory, we require 2 register, or you may say the 1 base address and 1 offset address. ठीक है. What is the function of base address? What is the function of base address? To give the starting address of the Perfect. The base address का function है to give the starting address of the segment. मतलब कहाँ से start होता है खत्म. And what is the use of offset address? Sorry. Used for adding. Yeah. What is the use of offset address? Sir, to give the address of the To point. end of segment, core segment memory. अच्छा. What is the use of offset address? Is that now we have just the CS will tell me from where that particular segment start. ठीक है. But if you want to move in that segment, if you want to just go to the particular location in that segment, then just offset address will help you. If you want to go to the particular location. ठीक है. Try to understand. If I just give the example, the things will be clear. Let's see. I will give some अपना रियल लाइफ का एग्जांपल, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा. लेट्स सी. ठीक है. लेट्स सपोज अपना अक्खा मुंबई है. ठीक है. मुंबई है. अब लेट्स सपोज
नाउ मुंबई को एक्सेस करना है मुझे, मतलब आई जस्ट वांट टू एक्सेस द मुंबई, ठीक है, बट व्हाट दे हैव डन इज मतलब दे हैव जस्ट लेट्स सपोज वी हैव जस्ट डिवाइडेड मुंबई इनटू द डिफरेंट पार्ट्स मतलब कैसे पता है, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ फास्ट ट्रेन, लोकल फिलहाल बंद है बट समझो, ठीक है, फास्ट ट्रेन कैसे, लेट्स सपोज मुंबई, लेट्स सपोज सीएसटी से ले सपोज दादर तक एक एरिया है, ठीक है, दादर से लेके ले सपोज कुर्ला तक एरिया है, देन कुर्ला से ले सपोज घाटकोपर तक एरिया है, घाटकोपर से ठाणा तक एरिया है, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब फास्ट ट्रेन अपना ऐसे हो सकता है, सीएसटी से देन सपोज भाईखला है, दादर से ले सपोज कुर्ला, कुर्ला से ले घाटकोपर एंड ठाणा, ऐसे डिवाइड है, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, सो दिस इज हाउ दैट लेट्स सपोज एंटायर दैट मुंबई और द लोकल का रूट इज डिवाइडेड, मतलब ये एक एरिया दादर एरिया, देन लेट्स सपोज दिस इज फ्रॉम दादर टू कोला वाला एरिया, ये घाटकोपर वाला एरिया, ठाणे वाला एरिया, ठीक है, ऐसे डिवाइडेड, ठीक है, सो दिस इज द मुंबई, getting now to access this particular Mumbai, what do we do now, this is the segment which you have done, try to understand, अभी से मतलब ये बेस एड्रेस का काम क्या होता है और ऑफसेट एड्रेस का काम क्या होता है, समझो, ठीक है, अभी ना होता क्या है, मतलब ना लेट्स सपोज मुझे करना क्या है कि लेट्स सपोज यू आर लिविंग समवेयर, किधर तो लिव कर, मतलब आई डोंट नो वेयर यू आर लिविंग, ठीक है, और मुझे अभी करना क्या है कि विद्याविहार को आना है, ठीक है, विद्याविहार इन द सेंस लेट्स सपोज मुझे सोमया में आना है, ठीक है, मुझे सोमया कॉलेज में आना है, क्या करोगे आप लोग, I just want to access the location which is Somaya, which is in let's suppose घाटकोपर region में किधर है तो सोमया है, क्या करोगे, विद्या विहार है। let's suppose you are catching fast train, मतलब we are just taking example of fast train, घाटकोपर। हाँ घाटकोपर उतरेंगे उधर से, स्लो स्लो अच्छा स्लो रिक्शा। पकड़ोगे, एनीथिंग एल्स, रिक्शा। या घाटकोपर से रिक्शा पकड़ोगे तो कॉलेज आएगा ना, समझो अभी, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, अब होता कैसे, नाउ दिस इज दैट एंटायर मुंबई वी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, मतलब ये अपने सेगमेंट से समझो, एंड टू एक्सेस एनी सेगमेंट ना व्हाट वी डू इज दैट वी विल बी यूजिंग अ ट्रेन एज अ बेस एड्रेस, बेस एड्रेस मतलब क्या, फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट, that is what we just use as a reference, मतलब ट्रेन लेट्स सपोज मुलुंड स्टेशन और लेट्स सपोज भांडुप स्टेशन और लेट्स सपोज घाटकोपर स्टेशन, ठीक है, सो फ्रॉम दैट यस घाटकोपर स्टार्ट्स, ठीक है, लेट्स सपोज कोला स्टेशन, तो यहाँ से कोला स्टार्ट होता है, आर यू गेटिंग इट, ठीक है, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेन, इट विल जस्ट लैंड यू एट द बेस एड्रेस, मतलब फ्रॉम वेयर इट एक्चुअली स्टार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, इट विल जस्ट टेक यू टू द पर्टिकुलर स्टार्टिंग, मतलब फ्रॉम वेयर द सेगमेंट स्टार्ट, मतलब इफ यू जस्ट लेट्स सपोज लैंड एट घाटकोपर, तो यहाँ पे आ गए, ठीक है, बेस एड्रेस मतलब क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी जस्ट गिव द स्टार्टिंग, मतलब फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, एंड नॉर्मली अपन जस्ट लोकल को रेफरेंस पकड़ते हैं, हाँ अब ये इधर से घाटकोपर चालू होता है, ऐसे अपन बोलते हैं, गेटिंग इट, ठीक है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेस एड्रेस, वंस अगेन इट विल जस्ट टेक यू टू द स्टार्टिंग, और यू मे से फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट, वहां पे ही लेके जाएगा, ठीक है, ट्रेन इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ बेस एड्रेस, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड वन मोर थिंग अबाउट द बेस एड्रेस इज दैट बेस एड्रेस कभी चेंज नहीं होता, base address will remain same, मतलब let's suppose my CS is 2000 and what's your programming, and if you just keep CS as a 2000, so for the entire program it is going to be 2000 only, you cannot change it, ठीक है, so likewise as I told, मतलब if you are having a घाटकोपर स्टेशन over here, बाद में if you feel नहीं यार घाटकोपर थोड़ा लंबा है, उसको घाटकोपर से ना खींच के ना सोमया के बाजू में लाते हैं, पॉसिबल है क्या, ऐसा स्टेशन को तो मूव करता है क्या, डू वी मूव द स्टेशन, No. No, ठीक है, so base address it is a fix, मतलब we cannot move that, मतलब it will be there only, it will start from there, मतलब ऐसा नहीं कि अभी इसको खींच के थोड़ा समय के पास में ना अच्छा रहेगा, no it is not like that, ठीक है, so base address once you define ना it is a fix, मतलब it will be like yeah, from यहाँ से ये भी घाटकोपर स्टार्ट होगा, समझो, ठीक है, and now let's suppose we are at the घाटकोपर, ठीक है, but we want to reach to the सोमया कॉलेज, वी वांट टू रीच द सोमया कॉलेज, तो क्या करेगा, तू बोलेगा ट्रेन को नहीं, अभी सोमया जाए, मुझे घाटकोपर नहीं जाना है, सोमया जाना है, तो फिर सोमया को छोड़ करके, ऐसा बोलेगा, ट्रेन को लेके सोमया में जाएगा, और विल द ट्रेन कम टू द सोमया विद्याविहार कैंपस का गेट आती है क्या, ऐसा नो, कम ऑन गाइस बी इंटरेक्टिव फटाफट, नो सर No, नो sir. नो ठीक है, सो द ट्रेन विल से कि बाबा घाटकोपर उतर, उसके बाद तेरे को जिधर जाना है जा, ठीक है, आई विल जस्ट ड्रॉप यू एट घाटकोपर, मतलब दैट बेस स्टेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस दैट, अब ये घाटकोपर रीजन अगर तुझे एक्सेस करना है, देन यू विल टेक ऑप्शन एड्रेस, दैट इज अ रिक्शा, ठीक है, नाउ दैट इज द फंक्शन ऑफ रिक्शा, की अभी ये एरिया में तेरे को जिधर घुमाना है वो घुमाएंगे, आई गेट इट, अभी घाटकोपर के मतलब विसिनिटी, मतलब घाटकोपर से टाने से जिधर भी जाना है तेरे को अभी रिक्शा लेके जाएंगे, आई गेट इट, ठीक है, जैसे वो मतलब सीएसटी से अगर विद्याविहार अगर सोमया आना है तो रिक्शा से नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ट्रेन से पहले घाटकोपर आएगा, घाटकोपर से रिक्शा मारेगा, समझ में आ रहा है क्या?
ठीक है, बिकॉज ये जो मतलब ऑफिसर एड्रेस है उनको एरिया दिया, मतलब रिक्शा कैन नॉट गो बियॉन्ड लेट्स सपोज सायन, ठीक है, सायन से अगर आगे जाना है तो टैक्सी पकड़ना पड़ेगा, लाइकवाइज गेटिंग इट, ठीक है, सो दैट ईच एंड एवरी ऑफिसर एड्रेस हैज अ एरिया फ्रॉम मतलब वेयर इट कैन मूव और वेयर इट कैन जस्ट रोम, ठीक है, सो नाउ वंस यू कम टू द घाटकोपर, इफ यू टू कम टू द सोमया, देन आई विल टेक अ रिक्शा, एंड अब ये रिक्शा घाटकोपर में किधर भी घुमाएगा, तुझे अगर सोमया में जाना है तो सोमया में जा, आरसीटी मॉल में जाना है तो आरसीटी मॉल में जा, इफ यू वांट टू गो एनीवेयर पंतनगर किधर किधर भी जाना है तेरे को ये रिक्शा घुमाएगा, ट्रेन लेके नहीं घूमता तू, ट्रेन का काम है जस्ट बेस्ट साइड से उधर छोड़ेगा, उसके बाद रिक्शा का काम चालू हो जाए, ठीक है, likewise here also if you want to access the core segment, now the thing is that it's just like मतलब that core segment, that this particular register will take you at the starting of the segment, मतलब कहाँ से start होता है, and if you want to access in that core segment then IP will help, ठीक है, now come to this one, now why 64 KB, why not 256 KB, ठीक है, as I told, what is the function of CS is that it will just land you at the starting address, and अगर आपको घूमना है तो फिर ऑफसेट एड्रेस हेल्प करेगा, ठीक है, एंड अभी कैसे, now this IP which is of that IP register which is of 16 bit that we have seen, it's of 16 bit means what, it can give an address of 16 bit only, try to understand what I'm saying, ठीक है, whenever it's in the 16 bit it can change from 000H to FFFFH, बराबर ना, 16 बिट ना, यार ये क्या हुआ, एक मिनट ना, FFFFH, ठीक है, इट्स 4 टाइम नॉट 5 टाइम F बिकॉज़ द 16 बिट, सो 4 ही रहेंगे समझो, 20 बिट नहीं है, ठीक है, सो व्हाट इज दैट आईपी का रेंज इज वेदर आईपी कैन जस्ट टेक द वैल्यूज, इट मे टेक फ्रॉम 000 टू FFFF समझो, ठीक है, so this many addresses it can provide, and if I tell ki that IP is of 16 bit, so how much memory we can access, or how much area we can access, just like 2 raised to 16 na, and if I just say 2 raised to 16 it is going to be the 64 KB समझो, ठीक है, so as the offset address is the one who will actually help you to move in that particular area, and उसका size is 16 bit, so it can range from 00 to FFFF, which actually a 64 KB area. Are you getting it? Because 16 bit का 2 raised to 16 का 64 KB मिलेगा, means what, IP can access at the most 64 KB, उसके ऊपर नहीं जाएगा, मींस एज आई टोल्ड, जो भी लेट्स सपोज रिक्शा है तो फिर घाटकोपर से लेट्स सपोज थाना तक उधर ही घूमेगा, उसके आगे नहीं जाएगा, लेकिन उससे आगे जाए तो लेट्स सपोज टैक्सी पकड़ना पड़ेगा, ऑफिसर एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, समझो, ठीक है, तो अब क्या होता है कि as this IP is of 16 bit, that's why though we required a 4 segment only, but instead of dividing each segment into 256 KB, we just divide to the 16 KB 64 KB, ठीक है, why, so that try to understand what I'm telling, let's suppose a memory है, ठीक है, let's suppose if I just divide into the 256 KB, each part of 256 KB, what will happen, yeah, each and every that base address will do its work, कहां से start होता है वो तो बताएगा, ठीक है, but now as I told, now if you want to roam in this particular area, then we required or we need to take a help of offset address, ठीक है, if I just take help of the IP, now IP will tell I can move only in a 64 KB. So though you have given a 256 KB का allotment to me, I can just access only this 64 KB का part. ये बाकी का part फोकट जाएगा समझो. I cannot actually reach to that particular locations because of that 16 bit का limitation. उसके ऊपर एड्रेस नहीं दे सकते अपन. Get it? Because अपना रजिस्टर 16 बिट का समझ में, ठीक है, so if I just make it of 256 KB होगा क्या, ये पार्ट तेरा फोकट जाएगा, ये यूज ही नहीं कर सकता तो. Are you getting it again? So that's why instead of making that, instead of dividing the memory into the 4 part of each 256 KB, we just divide that 1 MB, समझो, in 16 part, and now each part will be of 64 KB. समझ में आ रहा है, each part will be of 64 KB, ठीक है. Now if I say if the CS is started from here, तो IP will take care of all that range, मतलब IP will say कि मैं start से लेके end तक किधर भी घूम सकता हूँ अभी, ये एरिया पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है. एंड लाइकवाइज आई विल हैव 464 KB का सेगमेंट इन यूज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कांसेप्ट बता रहा हूँ पूरा, समझ में आ रहा है, ठीक है. नाउ दिस इज अ कोर सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट. Are you getting it? ठीक है. Now these are the 4 segments which we can use fully, मतलब we can just access each and every location of it. एक पार्ट भी फोकट नहीं जा रहा है, ठीक है. But now अभी प्रॉब्लम क्या पता है, अभी प्रॉब्लम क्या है, बाकी एरिया या बट ये एरिया तो अभी अनटच रहेगा ना. Are you getting it? ये एरिया तो अभी अनटच रहेगा, ठीक है. अभी कैसे, मतलब वो अनटच नहीं था, वो फोकट नहीं जाता, समझो अभी कैसे होता है, ठीक है. अब इसमें कंसेप्ट कैसे,
कि yeah, this is the 4 segment is fine. मतलब now you can just access, मतलब दो we are divided into the 64 KB. How many we are accessing? 4 into 64 ना, तो access कितना कर रहे हैं? 256 KB है, and पूरा entire memory कितने का 1 MB का है, ठीक है? तो बाकी पार्ट तो फुकट ही जा रहा है वैसे देखने का, बिकॉज ये सब अपन ने क्यों किया, ये पार्ट फुकट ना जाए करके, बट ऐसा किया तो भी फुकट ही जा रहा है ना, बट नहीं फुकट नहीं जाता। अभी इसमें कंसेप्ट देखो कैसे, ठीक है? Now what that 86 says कि let's suppose if you are using any of the segment, data segment, excel segment, कुछ भी यूज कर रहे हो, and let's suppose वो फुल हो गया, अगर वो फुल हो गया, ठीक है, then you can change that base address, आप तो चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? देन यू कैन चेंज, मतलब यू कैन चेंज द डीएस का बेस एड्रेस, आप वो तो चेंज करके नेक्स्ट 64 के भी तो यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर वो सेगमेंट फुल हो गया, यू कैन जस्ट चेंज इट एंड यू कैन यूज दैट अनदर वन। Are you getting it? This facility is available. So, though we are dividing, no, we are dividing that part into 16 part. That 1 MB of memory we are dividing into 16 part. At a time, yeah, it's fine. At a time, we can just use only 4. At a time, we can just use only 4. At a time, ठीक है? हाँ, but if you want later on, मतलब if you want to shift that base address, yes, you can. It is also possible. तो ये बाकी का part फोकट नहीं आता। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये भर गया तो नेक्स्ट बना दो, ठीक है? It's just like, मतलब पहले जस्ट मुंबई था, एक्चुअली मुंबई था, एंड जैसे मुंबई भर गया, बाजू में नवी मुंबई ओपन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो लाइकवाइज ये पहले मतलब कोर्स में ये यूटिलाइज कर, अगर हाँ ये खत्म हो गया, देन यू जस्ट क्रिएट अ न्यू वन, ठीक है? यू कैन यूज अनदर वन, जस्ट आपको बेस एड्रेस फिर से चेंज करना है, एंड यस यू कैन जस्ट यूज अनदर 64 केबी ऑफ मेमोरी, गेटिंग इट? ठीक है, सो इट इज अ 1 MB ऑफ मेमोरी नाउ व्हिच इज डिवाइडेड into 16 part. Yeah, that is true, okay, at a time we can use only 4, but if you are just switching the task, if you are just going for the new program, then in that case yes, you can just use another segment as well. Are you getting it? ठीक है, at a time we can use a 256 KB, that is fine, but we can access actually 1 MB of memory totally by, मतलब let's suppose पहले एक कुछ तो प्रोग्राम के लिए इतना यूज किया, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए we can use another part. Are you getting it? ठीक है, so 1 MB मेमोरी फोकट नहीं जा रहा है अपना, ये केस में पक्का फोकट जाता था, समझ? ठीक है, बट ये केस में नहीं होता, ठीक है? ठीक है, so that's why we need to divide that part, or we need to make a part of 64 KB, not 256 KB, so that we can just use that entire memory. Are you getting it? Or each and every part of it, ठीक है? So this is called as segmentation, ठीक है? So अभी आपको एक्चुअल में लिखना क्या आंसर में, वेरी सिंपल, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है? यू कैन जस्ट से लाइक वी आर हैविंग टोटल मेमोरी ऑफ 1 MB, ठीक है, which is divided into the 16 part, each part will be of 64 KB. Why 64 KB? You can say that as offset address of 16 bits, so maximum we can access 64 KB. ठीक है, now out of the 16 part we require a 4 segment, that is a core segment, data segment, extra segment and stack segment. Are you getting it? ठीक है, now हर एक segment की खासियत है, what is the use of that खासियत, that you have to tell, ठीक है? That is what is you have to write in the segmentation, and everything is given in your notes, you can refer to it, ठीक है? I was just telling the funda, उसके बाद yeah, now you have to just say that core segment. Now you have to just explain a core segment. Now what is the use of core segment? We just use a core segment for what? For what To purpose? store the program. परफेक्ट, ठीक है, जैसे अपने ड्राइव रहते हैं ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव वगैरह, सी ड्राइव में मोस्टली ओएस रहता है, प्रोग्राम्स रहते हैं, डी ड्राइव में वगैरह अपना डेटा रहता है, लाइकवाइज इधर भी वैसे ही है, ठीक है? इन अ सी ड्राइव, सॉरी, इन अ कोर सेगमेंट वी हैव टू स्टोर अ प्रोग्राम, इन कोर सेगमेंट यू विल गेट ओनली प्रोग्राम, नॉट एनी अदर फालतू का डेटा, ठीक है? इन अ डी ड्राइव यू कैन स्टोर सम डेटा, व्हाटएवर यू वांट. In an E drive, it is actually extra segment which is actually used for string operation. If you want to do the string operation, you can go with the E. And this is the stack segment or a stack memory, which is actually used in a stack operation. अब ये stack operation क्या होता है बाद में बताएगा, ठीक है? So हर एक segment का काम है ना, core segment is actually used for the storing the code. And to access this code, we require CS and IP. That you can say. And इनका example दे सकते हैं. Let's CS is so and so, IP is so and so. Then we can go to that particular location. Likewise, data segment. Data segment is used for storing some data. ठीक है, whatever data required for our program or some anything, ठीक है? So that data will be stored over here, and to access this one we require DS and SI, ठीक है? Likewise for the extra segment is used for a string operation. String operation मतलब series of data, ठीक है? So this can be accessed by using ES and DI, and the stack segment which can be accessed by SS, SP and BP. This is what we have said, ठीक है? So this is all you have to say regarding the memory segmentation. Getting it? Have you understood what is memory segmentation? Any doubt? I have just given the idea. What you have to write, that everything is given in a notes. You can just refer to it. Any doubt? Any doubt to anyone? No, sir. Come on. कुछ भी डाउट? सेगमेंटेशन समझा क्या होता है? Why do we divide into the why do we make it of 64 KB only? Why not 256?
Keep the Yes, sir. things clear, huh? Yeah, okay, fine. Now where is the notes? Just a second, I'm searching for notes. Yeah, this. So that whatever you want to write and everything that is given in notes, you can refer to it. I'm not wasting time on that. I'll just give you where it is. So this is all regarding. सर ये वाला नहीं है, इसके ऊपर वाला नहीं नहीं, था हाँ जो वही दूसरे वाला है। वही मैं सोच रहा हूँ, मैंने किधर रखा मेरे को नहीं पता, याद आ रहा। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। I've just forgot. सर उसके ऊपर उसके सर ऊपर ही उसके है। ऊपर ही था एमपीएमसी। हाँ, एमपीएमसी नोट, सॉरी। ये ऐसे होता है, सामने होता है मगर दिखता नहीं है। या आई थिंक दिस इज द नोट्स व्हिच आई शेयर टू यू. So this is that regarding architecture and everything is given. I'm just telling you how to read that notes. This is what मतलब just refers for writing in exam. क्या क्या लिखना पड़ेगा. I'm just clearing the concepts over here. ठीक है? So this is regarding the flag registers and all. You can refer to it. Yeah, this is regarding the memory segmentation. So this is the diagram you have to draw, and this is the explanation which you have to give. So this is what we have seen: core segment, stack segment, data segment, extra segment, and for each, what are the base addresses? Sorry, offset addresses. Fine. Then the explanation is over here. ये क्या होता है? Segmentation, dividing the memory into the 64 KB and all that is all given here. Then उसके बाद you have to just tell regarding the each segment, the core segment का use का, data segment का use का, stack segment and everything. So that is given here. Understood? ठीक है? So this is all regarding the segmentation. You can just read this advantages. They are simple. Getting? So I just told you the concept of segmentation. Now the next one, let's see what is a memory banking. ठीक है? Next concept is a memory banking. Let's move on to that. Yeah. So we are done with the memory segmentation. I just clear that concept. Now the next funda is memory banking. ठीक है? This is also the मतलब as far as the theory or the what you can say, the theory part is concerned, is very small thing, just one page का note है, बाकी कुछ नहीं. ठीक है? हाँ, but once again फंडा वाइज बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है. ठीक है? मतलब समझने के लिए. ठीक है? ठीक है? So let's see what I told regarding memory banking. Memory banking चीज क्या है? फिजिकली डिवाइड Yeah, करने का। physically divided them in two parts. Now, first of all, the very first thing, why do we need to divide memory into two parts? Why to divide the memory into two parts? Physically two parts. क्यों करने का? मेमोरी बैंकिंग 1 MB हो इसलिए। नहीं रे, तो 1 MB का पूरा एक जीपी यूज करना, वो भी मिलता है, बट ऐसा नहीं करते अपन. अपन दो 512 KB का यूज करते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई टू डिवाइड द टू पार्ट, व्हाई टू डिवाइड द 1 MB इनटू टू पार्ट्स? एक सिंगल यूज करना 1 MB का, कुछ एक नहीं है क्या लोअर वहाँ एड्रेस पे? हाँ हाँ, करने के लिए और एक हायर एड्रेस। लोअर और हायर एड्रेस है कुछ। नहीं ऐसा नहीं है. Can anyone tell me why do we need to divide into two part? जरूरत क्या है, करना क्यों है ये मेमोरी सेगमेंटेशन वगैरह, क्यों क्या समझाना 16 पार्ट में वगैरह? ऑफसेट एड्रेस के लिए 64 KB का बनाना पड़ता है. ठीक है? लाइकवाइज ये इसको तोड़ने का ही क्यों दो पार्ट में? 1 MB का एक कंप्लीट यूज करना चलेगा नहीं क्या तेरे को? First that thing must come to your mind is the why to divide into the two part. Guys, here I am just covering your concepts. Are rest of the things are there in the notes. You can just read the notes. बस मैं हर एक चीज पूरा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, मतलब वो notes वगैरह के हर एक पॉइंट वगैरह नहीं ले रहा हूँ. I'm just telling you the concept. And once the concept is clear, you can read the notes and you will get, अरे हाँ ऐसा है करके. You need not to mug up actually. You will understand the thing. ठीक है? पहले बोले दो पार्ट में डिवाइड क्यों करने का? दिमाग लगाओ. अरे डिप्लोमा हो ना तुम लोग, डिवाइड क्यों करना पड़ता है? चलो, हिंट इज डेटा लाइन. समझो ये एक भारी कंसेप्ट है बहुत. हिंट इज डेटा लाइन, मेमोरी बैंकिंग. एक क्वेश्चन अगर आया तो ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क के लिए आएगा, उसके ऊपर कभी नहीं आएगा. हाँ, बट कंसेप्ट वाइज बहुत सही है. हिंट इज डेटा लाइन. एनीवन? कोई माइका लाल नहीं तो लाली कैन एक्सप्लेन व्हाई टू डिवाइड दिस 1 MB इनटू द 2 और 512 KB? व्हाई नॉट टू जस्ट हैव a 1 MB का मेमोरी चिप? एक ही यूज करो यार, खत्म. क्यों हार्डवेयर बढ़ा रहे हो? गाइस, थिंक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, जिसमें वन साइड बताते नहीं रहता. आई डोंट लाइक दैट. एनीवन? जैसे में डिवाइड क्यों करने का, जरूरत क्या है? अच्छा लगता है क्या डिवाइड करने से? मजा आता है. हम्म.
आयुष, yes, come on, speak up. Why to divide? Ayush, you can unmute yourself. Guru Prasad, Guru Prasad. Hey guys, please come and answer sir, because already मैं आज बहुत tired हूँ. हाँ बोल. कुछ भी बोलो, मतलब दिमाग लगाओ और बोलो ना, डिवाइड क्यों करने का जरूरत क्या है? Yes, Data yes. and can access that much only memory. Data. Data lines उतना ही हाँ हाँ. मेमोरी एक्सेस कर सकता है. उतना ही मतलब कितना डेटा लाइन कितना कर सकते हैं? व्हाट इज द साइज ऑफ डेटा लाइन इन 86? कितने बिट का डेटा लाइन? 16. या 16 बिट का. अब हाउ द डेटा लाइन इज रिलेटेड टू द मेमोरी बैंकिंग? समझो समझो. अगर आप आंसर दोगे तो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, अदरवाइज ये जस्ट 5 मार्क का जो भी क्वेश्चन है खत्म करेगा. दैट्स इट. मतलब जो रिक्वायर्ड थियरी है, कांसेप्ट ज्यादा बताते नहीं रहेगा. आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू. थोड़ा बहुत तो डिवाइड क्यों करने का? अच्छा, one more thing. Hint is that this one, ये वाला part is a hint. ये one more hint. पहला hint ये दिया डेटा लाइन, दूसरा ये hint. इसके बारे में 22. आपको बोला है मैंने कुछ. हाँ बोल. लगाओ दिमाग, दिमाग तो लगाओ कम से कम यार, इंजीनियर हो. Yeah. Yes, this is one more hint. B. What it can be? No. Oh. any girl over here? Jill Rathod, please come in. Yes, sir. Yes, sir. Any comment on this one? Memory banking. Why to divide in two parts? No. Sir, no idea. ठीक है, चलो लेट मी टेल यू. अब मैं थोड़ा सा जितना चाहिए उतना ही बताऊंगा. लेट्स सी. ठीक है. Now we have seen memory. ठीक है. अरे वेरी गुड, एग्जाम्पल बन गया. we have seen a memory. ठीक है. एंड we seen memory मतलब क्या होता है? जस्ट लोकेशन एंड डेटा रहता है. memory मतलब क्या डिफरेंट, you will have an address or location and here you will have a data. But what is the limitation for one location? How much we can store at one location? 8 bit. Yeah, we can store only 8 bit. समझ में आ रहा है? We can store only 8 bit. ठीक है. And what is the size of our data line? 16 bit. ठीक है. So means what? Let's suppose if you have to use your data line fully, or you want to use your data line what you can say that efficiently, then what you will try to do? You will try to access the two location at a time, ना? समझ में आ रहा है क्या? तभी जाके 16 बिट का डेटा मिलेगा ना. सर समझा नहीं. देख, my data line is of 16 bit, means what? From memory it can just fetch 16 bit at a time. ठीक है. my data line का अगर कैपेसिटी 16 बिट है तो at a time वो 16 बिट उठा सकता है. ठीक है. नाउ 16 बिट उठाएगा, डेटा वगैरह सब रहेगा किधर? मेमोरी में. व्हाट आर द डेटा इज इन मेमोरी. ठीक है. नाउ मेमोरी का लिमिटेशंस क्या है कि एट वन लोकेशन वी कैन स्टोर ओनली 8 बिट का डेटा. At one location we can store only 8 bit ka data. Okay. Now if you have to use your data line fully or efficiently, or you have to use that you have to make use of that all the 16 bit, then at a time you have to just place two locations, no? Right or wrong? तब जाके टोटल 16 बिट का आएगा ना डेटा. समझ रहे हो बात को? ओके. ठीक है. बट अभी प्रॉब्लम कैसे वन मोर प्रॉब्लम इज दैट नाउ मींस we cannot access two location at a time. We can just access only one location. We cannot give two location at a time on address. Address है मतलब कि एक्चुअली लाइंस रहते हैं. ठीक है. एक्चुअली पिन से वो एड्रेस का पिन, तो हर एक पिन पे एक एक मतलब लेट्स सपोज कुछ तो एड्रेस रहेगा, तो उसका एक एक वो बिट 0101 जाता है. सो एट अ टाइम दो एड्रेस नहीं सकता. एट अ टाइम वी कैन गिव ओनली वन एड्रेस. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. मींस एट अ टाइम वी कैन नॉट एक्सेस टू लोकेशंस इन वन चिप. वो प्रॉब्लम है.
Getting it? ठीक है. Let's suppose I want to access data from let's suppose 1000 locations. So at a time we can give only 1000. 1000 and 1001 नहीं दे सकते. ठीक है, मतलब जैसे लिफ्ट लिफ्ट एट टाइम वो एक ही फ्लोर पे रुकेगी, तो फोर्थ नहीं तो फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों में एक साथ नहीं रुकेगी. आर यू गेटिंग इन? सो वी कैन एक्चुअली गिव एड्रेस ऑफ वन लोकेशन एट अ टाइम. वो प्रॉब्लम है. समझ में आ रहा है? ठीक है. सो दैट्स व्हाई व्हाट आई ट्राइड इज दैट. नहीं देख, पहले पहला देख, मतलब ये कैसा स्टेप बाय स्टेप जाता है, मतलब ये साइंटिस्ट लोगों ने कैसा थिंक किया उस टाइम पे, कैसे वो बैंकिंग वगैरह वो कैसे वो सॉर्ट आउट किया, समझ है? ठीक है. नाउ हियर द 86 का डेटा साइज ऑफ 16 बिट. ठीक है. एंड वी कैन एक्सेस 1 MB ऑफ मेमोरी. नाउ लेट्स सपोज इफ आई जस्ट टेक ओनली 1 MB ऑफ मेमोरी. समझो समझो समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. इफ आई जस्ट टेक ओनली वन चिप, 1 MB ऑफ मेमोरी का एक ही चिप है. ठीक है. सो टू यूज दैट 16 बिट टू एक्सेस द 16 बिट, व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू एक्सेस द टू लोकेशंस. एंड दो लोकेशन एट ए टाइम एक चिप से उठाना पॉसिबल नहीं है. दो लोकेशन एट एक चिप से उठाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो मैंने क्या सोचा, चल ठीक है, एक चिप से उठाना पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर मैं दो चिप में डिवाइड करते हैं. समझ में आ रहा है क्या? Are you getting it? It's not possible to fetch because at a time we cannot give an address, मतलब two location का address at a time send नहीं कर सकते. We can give only address of one location. समझो, at a time दो location का address कभी नहीं send कर सकते. We can give only one address location. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. ये लोकेशन रहता है, इधर डेटा रहता है. अगर आपको डेटा फेच करना है तो ऐसा टोल पहले लोकेशन देना पड़ेगा, उधर तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके बाद आप डेटा उठा सकते हो. ठीक है. तो पहला प्रॉब्लम क्या था कि एट अ टाइम वी कैन नॉट एक्सेस टू लोकेशंस ना इन वन चिप, सो आई विल जस्ट डिवाइड इनटू टू पार्ट. समझो समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये बहुत सही कांसेप्ट है एक्चुअली. है तो 5 मार्क का जस्ट थोड़ा सा ही है, बट कांसेप्ट समझो. ठीक है. सो अभी ये 1 MB का मेमोरी समझो, इस एक्चुअली रेंज फ्रॉम 0000F to FFFFFH. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू डू नॉट गेट एनीथिंग देन प्लीज आस्क मी इन बिटवीन. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, इधर बीच में से डिवाइड कर दो. ठीक है. अब इसका सेंटर पॉइंट होता है 7FFFH. अब 0 to F का center point is 7FFH. ठीक है. So what I will do is that now this entire 1 MB I will just divide like this one, 00000H. ठीक है. Then to this 7FFFH. ये हो गया, ये समझो आप FFFF में इसने ट्रायंगल बना दिया. ठीक है. एंड यहाँ पे it will start from 8000 another part and it will go sorry 80,000 and we just go up to the FFF. तो जितने भी लोकेशन से मैंने आधे आधे डिवाइड कर दिए. ठीक है. इधर और आधे. ठीक है. अब ये मेरा 512 KB का बन गया, ये 512 KB का बन गया. समझो समझो. ठीक है. या नाउ इफ आई जस्ट डिवाइड इनटू टू पार्ट, अभी पॉसिबल है 16 बिट उठाना? इज इट पॉसिबल नाउ टू फेच 16 बिट? यस सर. नो, दिमाग तो लगाओ यार. ये डिवाइड क्यों किया, समझा ना? ओके. नाउ इज इट पॉसिबल टू फेच 16 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम? इधर से 8 बिट, इधर से 8 बिट. यस सर. नो. Yes, yes. ठीक है. हाँ, बट अभी प्रॉब्लम कैसे समझो, एक एक मतलब आई एम जस्ट गोइंग इन दैट इवोल्यूशन कैसे हो, एक एक स्टेज मतलब कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं, कैसे कैसे थिंक करना पड़ता है. ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन इंजीनियर इज कंसर्न. ठीक है. अभी क्या हुआ, नाउ लेट्स सपोज इफ आई जस्ट डिवाइड लाइक दिस वन 00 to 7FFF and 1000FFF. ठीक है. प्रॉब्लम कैसे हुआ पता है? सो दो वी आर डिवाइड टू द टू पार्ट, मतलब डिवाइड करने का जो मकसद क्या था, इफ आई जस्ट डिवाइड इधर से 8 बिट उठाऊंगा, इधर से 8 बिट उठाऊंगा, बट फिर से प्रॉब्लम हुआ. प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? Problem is that now normally we just fetch data sequentially. मतलब अगर मेरा फर्स्ट बाइट अगर 001 00 लोकेशन पे, नेक्स्ट मेरा बाइट 0001 लोकेशन पे रहता है. व्हाट आर द नेक्स्ट पार्ट आई वांट. ठीक है. समझ में? नेक्स्ट पार्ट आई वांट वो नॉर्मली नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लोकेशन पे रहता है. 8000 एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ऐसा नहीं रहता है. एक 00 पे और 8000 पे ऐसा नहीं रहता है. ठीक है. इफ इट इज फर्स्ट इट इज 00 लोकेशन, देन अनदर विल बी एट 001, another will be at 002 and likewise. Okay. So though we have separated these two parts, that 512 KB, 512 KB, the problem is that though we have separated, but still the problem is same. Why? Because still we want to access that data from the one memory itself, from this only. Now these are the two location we want to access. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. It's not कि I want to access this one and this one. Why? Because my data normally goes sequentially. इसके बाद इधर ही जाता है, इसके बाद इधर ही जाता है. ठीक है. ऐसा रैंडमली किधर भी नहीं होता है, तो प्रॉब्लम होता था फिर अपने को. ठीक है. ठीक है. तो दो वी आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट ना, तभी भी कुछ फायदा नहीं है, तभी भी प्रॉब्लम इज स्टिल अ प्रॉब्लम. व्हाई? बिकॉज़ वन सेकंड एट अ टाइम वी कैन गिव ओनली वन लोकेशन एंड खत्म. एट अ टाइम वी कैन एक्सेस ओनली 8 बिट. अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? दिमाग लगाओ. कम ऑन. अब क्या करूं? समझा प्रॉब्लम क्या हुआ? मैंने डिवाइड किया, मतलब सोचा मैं 8 बिट उठाऊंगा, बट स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ जो भी डेटा मतलब यू हैव टू फेच इज एक्चुअली सीक्वेंशियली जाता है. सर यस. नाउ दोनों का 8 बिट उठाने का
हाँ बट प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं 8 बिट यहाँ से उठाऊं बट नेक्स्ट 8 बिट जो मुझे उठाने का रहेगा वो इधर रहेगा, इधर नहीं रहेगा। तो अगर मैं प्रोग्राम वगैरह कुछ स्टोर करता हूँ ना तो ऐसे होता है, एक 8 बिट इधर जाता है, नेक्स्ट इसके सब्सिक्वेंट लोकेशन पे जाएगा, मतलब 0 के बाद 1 पे जाएगा, 0 के बाद ये 8000 पे नहीं जाता, समझा क्या? सो ऐसे सेट कर सकते हो कि 000 उसके बाद नेक्स्ट 8000 से स्टार्ट हो। सॉरी 0 0 0 0 नहीं, ऐसा नहीं होता, वो एक लफड़ा है। इधर एक डेटा दे, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ऐसा मतलब लोकेशन तो तो वो एक कंटिन्यूस टाइम होता पे है। एक सेट कर सकते हो और दूसरा ऐसे कुछ। देख अपना एम क्या है कि मेरा 16 बिट फुल यूटिलाइज होना चाहिए, एट अ टाइम में 16 बिट का डेटा आना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, समझा क्या? वही इंपॉर्टेंट है सबसे मेरे लिए। नहीं तो फिर डेटा लाइन 16 बिट का ओके कुछ फायदा नहीं, वी कैन जस्ट मेक इट ऑफ 8 बिट एंड बी हैप्पी। ठीक है, हियर द डेटा लाइन ऑफ 16 बिट एंड उसका कुछ तो यूज करना चाहिए, अदरवाइज वी कैन मेक इट ऑफ 8 बिट, तो टेंशन नहीं है। तो एक बिट सिंगल चिप लगा ले एंड खत्म, उसमें डिवाइड वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये लपड़ा सब क्यों चल रहा है, बिकॉज मेरा डेटा लाइन 16 बिट का उसका मुझे यूज करना है एफिशिएंटली। ठीक है, अब क्या करो एनीवन? Now the problem is that the data to which we want to fetch, they are like अगर एक 00 में है तो दूसरा 001 में है, तो उनको अगर उठाने का तो क्या करूं? कम ऑन थिंक। अगर मैं डिटेल में जाना चाहूँ तो बहुत डिटेल में जा सकता हूँ इसके, बट ठीक है मैं आपका जस्ट व्हाट कैसे लॉजिकल लेवल एंड वो सब देख के मैं डिसाइड करूंगा कितना डीप में जाने में। यस कम ऑन, व्हाट कैन बी डन नाउ? बेस्ट वे ना, मतलब इफ यू वांट टू, मतलब देख मैंने डिवाइड क्यों किया कि इधर से उठाओ इधर से उठाओ। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, जो दोनों लोकेशंस है, दो एड्रेसेस व्हिच वेयर वी वांट टू फेच, दे आर एक्चुअली लाइंग इन सेम मेमोरी ना, सेम वो मेमोरी में, एक मेमोरी चिप में। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज दैट, व्हाट आई विल डू इज दैट, व्हाट आई विल डू इज दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन, आई विल डिवाइड टू द 512 केबी ओनली। समझो 1 एमबी जो भी है 512 केबी में डिवाइड करेगा। कुछ भी पार्ट नहीं समझ रहा ना प्लीज आस्क। ठीक है, एड्रेस रेंजेस फ्रॉम 00000f to FFFF, दैट इज फाइन। देख पहले मतलब आई विल जस्ट मेक इट सिंपल, लेट्स सपोज 0 to 10 है, 0 to 10 नहीं 0 to 9 लेते हैं। ठीक है, 0 to 9 है लोकेशन से। ठीक है, मुझे मैंने डिवाइड करना था दो पार्ट में, तो मैंने पहले कैसे किया, 0 to 4 किया एंड 5 to 9 किया, परफेक्ट। ऐसे किया, मतलब दिस इज व्हाट दिस केस इज, 0 to 4 किया 5 to 9 किया। ठीक है, बट आई अंडरस्टूड यार 0 लोकेशन का एक्सेस करना तो नेक्स्ट मुझे 1 का एक्सेस करना। ठीक है, सो हाउ विल आई डिवाइड नाउ, हाउ विल आई डिवाइड नाउ, अभी ये दिमाग क्या लगाएगा समझो। ठीक है, मुझे अभी ये 10 बाइट ले, सब 10 बाइट का है, मैंने 5 5 बाइट में डिवाइड किया, ये 5 बाइट और ये 5 बाइट, मतलब 0 पे 1, 1 पे 2 पे 3 4 4 पे। ठीक है, लाइकवाइज द 5 6 7 8 9 एक एक बाइट है, तो 5 5 बाइट में डिवाइड किया, 10 बाइट का मेमोरी। ठीक है, इसे अपने तो 1 MB ऑफ मेमोरी टू पार्ट में डिवाइड किया, 512 KB 512 KB, आई एम जस्ट सेइंग दिस वन फॉर सिंपलिसिटी। ठीक है, बट इफ आई जस्ट डिवाइड लाइक दिस वन एड्रेसेस तो फिर प्रॉब्लम ही है ना, स्टिल प्रॉब्लम इज देयर, बिकॉज़ वी वांट टू एक्सेस लाइक 0 देन उसके बाद 1 का लोकेशन। अब मैं क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड ही करना है, मैं ऐसे करेगा, समझ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, कुछ समझा क्या किया हाँ, मैंने, क्या किया? इवन नंबर्स को एक साइड पे और नंबर्स को यस, एक पे। दैट्स व्हाई वो इवन बैंक एंड ऑड बैंक बने, जो बोलते हैं ना, समझो फंडा समझो वो सब क्यों है। एज आई टोल्ड यूपी में हर एक चीज के पीछे रीजन है, हर एक चीज के पीछे रीजन है, आप जितना पूछोगे ना उतना मैं बताऊंगा। देखिए let's say, अब मैं क्या करूंगा नाउ, इधर में इफ आई जस्ट डिवाइड एड्रेसेस लाइक दिस वन, तो लफड़ा है, बिकॉज़ जो भी व्हाट इज द नेक्स्ट लोकेशन व्हिच टू एक्सेस इज लाइज इन दैट वन मेमोरी itself। तो मैं उससे अच्छा क्या करूंगा, एक लोकेशन इधर रखूंगा, एक लोकेशन इधर रखूंगा, एक लोकेशन इधर, एक लोकेशन इधर, एक लोकेशन इधर, खत्म। अब एक इधर से होता है इधर से होता है, खत्म, वही तो चाहिए, 0 के बाद 1 पे हो गया काम। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, यस यस। so that's why in this memory we will have that all 0000002 00004 and likewise. ठीक है, and here I will have 000 then 0001 0003 5 7 and likewise. ठीक है, so here I will have that all the even address, so that's why this particular bank will be called as even bank and this bank will be called as odd bank. समझ में आ रहा है क्या? सर हाँ बोल। सर वो एक टाइम पे दोनों बैंक में से मेमोरी एक्सेस करता है। हाँ हाँ हाँ, दोनों बैंक में से करते हैं। कैसे करता है? क्योंकि मतलब एक मेमोरी लोकेशन, एक ही मेमोरी लोकेशन का एड्रेस एक टाइम पे परफेक्ट जा परफेक्ट, सकता सही है। पकड़े सही पकड़े। चल अभी मेरे को नेक्स्ट बताने में मजा आएगा, अदरवाइज मैं बताता ही नहीं था। ठीक है, लेट्स सी, वेरी गुड। ठीक है, नाउ इससे इवन एंड ऑड समझो, समझो अभी, चलो चलो फंडा में अभी और जाएगा, अब थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, नहीं तो मैं ऐसा बोर हो रहा था अभी, लिटरली बोर हो रहा था, मतलब यार बच्चे लोग को कुछ आता ही नहीं। ठीक है, लेट इट बी, ये 0000001। ठीक है, ऐसे डिवाइड है, आई एम जस्ट लाइक हैप्पी, अरे चल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा। ठीक है, अगर वन लोकेशन इज ओवर हियर, अनदर लोकेशन हियर,
ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, इधर है, ठीक है। सो फर्स्ट बाइट विच टू फेच, ये इधर से करना है, नेक्स्ट इधर से करना है, वही तो चाहिए था। बट अभी 1 सेकंड, द प्रॉब्लम इज दैट यस एज आई टोल्ड एट अ टाइम वी कैन गिव ओनली वन एड्रेस, दो एड्रेस दे नहीं सकते। मतलब दो भी आर डिवाइडेड, मतलब बहुत दिमाग लगा कि मैं ऐसा कुछ तो किया, शानेगिरी के ऐसा कुछ तो किया, इधर 00001 आ गया, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। बट द थिंग इज दैट एट अ टाइम वी कैन गिव ओनली वन एड्रेस, दो एड्रेस नहीं दे सकता मैं। फिर से अटक गया अपन, ये बोलते हैं ना ऐसे आसमान से टपका और खजूर पे अटका, वैसे हो गया। Getting it? At a time, I can give only one address. Either we can give 000 or 001. Either we can give 002 or 003. दोनों एक साथ नहीं सकते. Address and at a time, two address cannot flow simultaneously. Sorry boss, हो नहीं सकता. अब इतना सब दिमाग लगा गया ना पानी में. अब क्या करूं? Your question is valid. That means at a time we cannot give two addresses. अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्या? हाँ बोलो. अब और एक इधर दिमाग लगा, सोचो उस टाइम पे साइंटिस्ट ने कितना झेला होगा, कितना मतलब दिमाग लगा होगा यार। इजी टास्क नहीं है, अपन जैसे इजीली ले लेते हैं ऐसा ऐसा, बट इफ वी स्टार्ट डूइंग इट प्रैक्टिकल है तो समझेगा किधर किधर अटक रहे हैं अपन एंड कैसे सॉल्व करने का, ठीक है। एनीवन, अब क्या करो समझो, अभी इसके पीछे भी देखो क्या मस्त दिमाग लगाया साइंटिस्ट लोगों ने। नेक्स्ट क्या करो, कौन कौन कौन, हरे अप। ये गाइस अपना 2:15 बजने को आया, मैं अभी तक 2 ही स्टेप कवर कर रहा हूँ जो भी छोटे छोटे। वो सर ऐड वो करते A0 बिट यूज करके डिसाइड करते हैं कि कौन से बैंक से यूज करना है। यस 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 A0, ठीक है। बट वो फंडा क्या पता है A0 वगैरह का, तो क्यों निकाला बाहर है नॉन। सर A0 बिट से मालूम पड़ता है कि एड्रेस इवन है कि ऑड है। हाँ हाँ हाँ, बट वो एक्चुअली, हाँ वो ठीक है, बराबर है, राइट है। मतलब A0 का 0 रहेगा तो इवन है, अगर 1 रहेगा तो ऑड है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है मेरा, मुझे एट अ टाइम 2 लोकेशंस देने हैं जो मेरे पॉसिबल नहीं हो रहे। ये दोनों लोकेशन एट अ टाइम एक्सेस करना है मेरे को, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली एक चीज बोलूं क्या आपको, मतलब ऐसे डिवाइड कभी होता ही नहीं, मतलब इधर 0 देन 0 के बाद 2 देन 4 ऐसा कभी होता ही नहीं। 0 के बाद 1 ही आता है कभी भी लोकेशन पे, 2 ही आता है, 3 आता है, 4 ही आता है, ऐसा कभी डिवाइड नहीं होता है एक्चुअल में देखने का तो। But this is I just told you for the understanding purpose. But still the problem is remaining same. ये 0 0 इधर है, 0 0 1 इधर है, अब क्या करूं। अब देखो दिमाग क्या लगा, लेट्स सी। दिमाग देखो क्या लगा, समझो देख। अभी ये मेमोरी कितने बिट के, कितना कितने साइज के, कितने साइज का मेमोरी है। 512 512 512 KB. Now to access that 512 KB, how many address line do we need? समझो समझो समझो, कितना कितना address line चाहिए। ये थोड़ा आना चाहिए 9, थोड़ा सा गलत जा रहा है। 19 ना, के ना इधर, हाँ 19 बराबर। we require 19 because देख कैसे समझने का। guys if any one of you having a doubt now please ask, ठीक है। देख कैसे होता है, let's suppose as we have seen, अगर एक लाइन है तो कितना लोकेशन एक्सेस कर सकता है तू। if you are having one address line, how much location you can access। अरे come on यार, तू सर ना, 2 या we can use 0 and 1 address, तो दो लाइन है तो we can access 4 4 4 locations, fine, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, अभी मैं उल्टा कर रहा हूँ, मतलब दिस इज ऑफ 2 बाइट, अगर एक लोकेशन पे अगर 8 बिट है, दिस इज ऑफ 4 बाइट, फाइन, ठीक है। सो 4 बाइट के लिए टू एक्सेस द 4 बाइट, हाउ मेनी एड्रेस लाइन वी रिक्वायर्ड, मैंने क्या किया 4 इज व्हाट 2 to 4, खत्म ना, ठीक है। नाउ मतलब आई एम डूइंग उल्टा, नाउ आई नो द मेमोरी साइज, आई हैव हैविंग दैट 512 KB, ठीक है। एंड टू एक्सेस दैट हाउ मच एड्रेस लाइन डू आई नीड, तो उल्टा करना ना, मतलब कि ये 2 को फॉर्मेट में लिख 2 19, और इवन से 2 9 into 2 10, ठीक है। बस 512 मतलब 2 9, के मतलब क्या 2 10 ना, के बी याद है ना, ठीक है। सो टोटल वी रिक्वायर 19 एड्रेस लाइन एंड हियर वी आर गिविंग, कितना दे रहे हैं 20 ना, ठीक है। अब देख अभी देख अभी देख अभी समझो, इधर इधर उन लोग को एक समझा कि अगर मुझे एक को 512 KB को पूरा एक्सेस करना है ना, तो 20 बिट की जरूरत नहीं है, 19 बिट से ही काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी उनको समझा कि देख नाउ इफ आई जस्ट सेट 0000 एंड 0001, समझो अभी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत डिप में जा रहा हूँ, मतलब इतना फंडा आप लोग को कोई नहीं बताएगा और किधर मिलेगा भी नहीं, ठीक है। नाउ दिस आर द टू एड्रेसेस, समझो, ठीक है। इफ आई एक्सपांड दिस वन, समझो अभी देख दिमाग क्या लगा है, सॉलिड है एकदम, फंटास्टिक चीज है, ठीक है। ये एच में है ना, तो मतलब एक्चुअली 0 क्या रहेगा 0000, ठीक है। ये 0 क्या रहेगा 0000, ये 0 क्या रहेगा 0000, ये वाला 0000। गाइस कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क, बिकॉज ये क्या बोलते हैं, अपना अमृत से कम नहीं ये सब चीजें,
ठीक है, ये बाइनरी, ठीक है. So this is what that 0 we have expanded. ठीक है. Likewise if I just expand this one, so it will go like this one. ये 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4. समझ में आ रहा है? This is how it will get expanded binary ना? Right or wrong? Yes. Yes, ठीक है. sir. Yes, Now, sir. now this is going to be your A19 line because मेरे पास 20 address line है, 20 address line. So it's actually range from A0 to A19. Fine, A0 to A19 lines है मेरे पास, A0 to A19 इतने lines है. Getting it? 20 address है मतलब 20 है ना, A0 line, A1 line. I hope you understand this one. डिप्लोमा दो, ठीक है, इतने लाइन से. So ये A0 से let's suppose, sorry, ऐसा रहता है MSB to MSB. A19 से let's suppose A0 तक, ये भी A19 से लेके A0 है. तो टोटल कितना लाइन है मेरे पास? 29 से. अब इनको समझा, इफ वांट टू एक्सेस दैट 512 केबी ना, तो 29 की जरूरत ही नहीं है, इसको निकाल दे. ठीक है. इफ आई जस्ट रिमूव दिस A0, नाउ व्हाट इज हैपनिंग? आर दिस टू एड्रेसेस बिकमिंग सेम? समझ में आने का, लगाओ दिमाग, समझो क्या किया. तो उन्होंने क्या रखा, उन्होंने क्या किया बताइए. जो एड्रेसेस देते ना, जो एड्रेस लाइन देते ना, उधर से A0 ही निकाल दिया. समझा अभी A0 क्यों निकाल दिया? If I just remove that A0, that both the addresses will remain, will become same. अब मैं क्या करूंगा? I will just pass this particular address to both the locations. देख मैं एक ही एक्सेस, मतलब एक ही मैं एड्रेस दे रहा हूँ दोनों को. Because अभी I am just giving एक ही एड्रेस, एक यहाँ पे यहाँ पे. अब as that A0 is removed, अब ये दोनों एड्रेस सेम बनेंगे. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. अब ये इधर से भी डेटा आएगा, इधर से भी डेटा आएगा. समझ में आ रहा है? Are you getting it the funda? ठीक है. If I remove that A0, now why to remove A0? Because अभी 512 एक्सेस करने के लिए मेरे पास मुझे 20 बिट की जरूरत नहीं है. We can just access by 19 lines. ठीक है. So I can just access by A1 to A19. अब मैं क्या करूंगा एक्चुअल में, कैसे करते बताए मैं मेरे को. If I just tell you, थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा डिटेल जा रहा हूँ एक्चुअल में. इतना डिटेल में आपको किधर भी नहीं मिलेगा, गारंटी है. Suppose A1 to A19. I will give to this one, and at the same time to the another line, another chip which is of 512 KB. I will give that A1 to A19. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. And A0 अपन निकालते हैं बाहर, A0 को निकालते हैं. ठीक है. Now I will just send the same address to both. एक ही एड्रेस सेंड करेगा मैं. ठीक है. अब ये डेटा इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा. समझ में आ रहा है? I'm just giving only one address, and because of one address we are getting both the data. Getting it? समझ में आ रहा है? Any doubt? Yes, sir. ठीक है. So now this is how, now this is how that lines will be given. A19 to A1 to A19 will be given to this chip as well as this one, and data line ऐसे देते हैं. अगर ये even है और ये odd है, so this is how we have to actually manufacture or do the connections actual में. Data line by distance दिखाएंगे. Either as it is an even bank, I will just give the D0 to D7, and this is odd bank, here I will give D8 to D15. मतलब इधर से जो भी आएगा मैं उसको बोलूंगा लोअर बाइट, इधर से जो भी आएगा उसको मैं बोलूंगा हायर बाइट. बट दोनों साथ में ही आ रहे हैं ना, खत्म. एक साथ एड्रेस दिया, दोनों को मिला, खत्म, दोनों आ रहे हैं. 16 बिट का डेटा एक्सेस हुआ. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है कैसे हुआ? एनी डाउट? एनी डाउट? सर तो फिर 0 1 के साथ ही पेयर बन सकता है ना, ऐसा नहीं बन हो सकता कि 1 और 2 एक पेयर बन सकता है. या वो भी एक. ठीक है. अब ये एक बन गया. ठीक है. बट इसके बाद और एक उन्होंने देखा, मतलब एक और एक चीज है, मतलब इफ यू हैव टू एक्सेस, मतलब इफ यू हैव टू फेच 16 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम ना, तो फिर मतलब इट इज कंपल्सरी योर व्हाट द डेटा इज दैट इट मस्ट स्टार्ट विद द इवन लोकेशन. इट मस्ट स्टार्ट विद द इवन लोकेशन. और लोकेशन चलेगा तो नहीं चलेगा. कैसे? मतलब अगर इफ लोकेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 001 एंड अनदर लोकेशन इज 002, because if you have to access the 16 bit means you have to access the two locations ना. ठीक है. but let's suppose your data is starting from 001, तो होगा क्या? if I just expand this one, I will just expand the last part only, 001, तो 1 कैसे रहेगा? 0001 ना, and 2 कैसे रहेगा? 0010, and we are just removing 2 at this A0 line. समझो. ठीक है. अगर मैंने A0 भी रिमूव कर दिया, बट ये दोनों एड्रेस सेम नहीं बनेंगे. इधर सब 00 ठीक है, बट आर दे सेम नाउ? नो, अभी No. सेम नहीं. तो फिर 88 बिट का डेटा है. तो इन्हें रूल बनाया, if you have to access the 16 bit of data ना, then your lower byte must be at the even location and higher byte must be at the odd location. That is compulsory. Lower byte must be at the even location, or you may say your data must start from a even location. Are you getting it? Data must start from a even location. तो ही possible है, because अगर ये 0 रहेगा, let's suppose if I take 2 and 3, तो चलेगा. देख, इस starting from a 2 ना. ठीक है. तो 2 को एक्सपांड करूंगा 0010, 3 को एक्सपांड करूंगा 0011, ये मैं रिमूव कर देगा, दोनों सेम. हाँ, but if I take 3 and 4 तो नहीं चलेगा. So that's why the rule is that if you access 16 at a time, then it must start with the even location. Getting it? तो ही possible है. अगर all location start होगा तो नहीं होगा. Understood? Understood the concept, everyone?
यस और नो? फिर वो A0 Yes, वो sir. निकालते कैसे वो बिट? A0 तो वो लाइन निकालने को, लाइन कनेक्ट नहीं करने का मेमोरी को, गेटिंग इट? A1 टू A90 नहीं कनेक्ट करने का सिर्फ, समझेगा? वो जो लाइन से यूपीएससी जो आता है एड्रेस है, वो A1 A0 कनेक्ट ही नहीं करने का उसको, गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या? सर तो फिर हाँ सर बोल। ऑड बैंक का फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या रहेगा? यस, अभी जैसे मैंने बोला कि ये ऐसे कभी नहीं होता है, ये ऐसे कभी नहीं होता, मतलब इधर 00 और इधर 001, इधर 002, ऐसा कभी नहीं होता है। दोनों भी एक्चुअल में ऐसे ही रहेंगे, 00000, इधर भी 0000, इधर भी 001, इधर भी 002, इधर भी 001, ये भी 0 रहेगा, 1 रहेगा, 0123, इधर भी 0123, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। बट अभी मेरे लिए क्या रहेगा, अब मैंने A0 निकाल दिया ना, समझ 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 समझ, ठीक है? ये एक्चुअल में मेमोरी मेमोरी कौन सी मेमोरी में ऐसे ही लोकेशंस रहते हैं, ये रैंडम नहीं होता, मतलब 024 ऐसा नहीं होता, बीच बीच में गायब ऐसा नहीं होता कभी, ठीक है? बट अभी कैसे होता है, बट फॉर मी आई विल ट्रीट लाइक दिस इज 00 लोकेशन, दिस इज 001 लोकेशन, बिकॉज आई एम जस्ट रिमूविंग द A0 ना, ठीक है? अगर मैंने A0 लगा दिया एक्स्ट्रा, तो इधर 0 बनेगा, इधर 1 बनेगा ना, समझ में आ रहा है Yes. क्या? गेटिंग है, ठीक है? इधर भी दोनों पे एक्चुअली 1 1 ही है, बट मैंने A0 लगा दिया, A0 इधर 0 होता है, इधर 1, तो इधर 2 बनेगा, 3 लगा दिया, 3 बन गया, समझ में आ रहा है क्या? गेटिंग है? तो मेरे लिए एक्चुअल मेमोरी में तो वो 0 1 2 3 रहेगा, बट मेरे लिए फॉर मी, बिकॉज आज आई हैव रिमूव्ड दैट A0, ये मेरे लिए 0 0 है, 0 0 1 है, 0 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लाइकवाइज, मतलब इधर सब इवन हो जाएंगे, इधर सब ऑड हो जाएंगे, बट एक्चुअल में वैसा नहीं होता, बट मेरे लिए क्यों? बिकॉज मैंने A0 निकाल दिया, समझा? फंडा समझ में आ रहा है? यस और नो? सर हम लोग के लिए वो और 2468 होता है, ऐसा बोला ना आपने? क्या क्या क्या? हम लोग के लिए 2468 होता है, लेकिन परफेक्ट, एक्चुअली हम लोग के लिए 2468 होगा, बट एक्चुअल मेमोरी वो 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 4 5 ऐसे ही रहेंगे, गेटिंग इट? यस सर. ठीक है, या सो नाउ दिस इज नाउ आई एम जस्ट हैप्पी, यस मैंने मतलब सॉल्व हो गया मेरा प्रॉब्लम, एट टाइम 16 बिट आ रहा है, ठीक है? बट फिर से प्रॉब्लम आ गया एक, पता है क्या? मतलब नाउ आई एम हैप्पी, मतलब यस आई एम जस्ट एक्चुअली एक्सेसिंग द 16 बिट एट अ टाइम, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, परफेक्ट, बिकॉज़ आई एम जस्ट गिविंग ओनली वन एड्रेस, खत्म। ये इधर CS बार रहता है, पता है ना, CS बार चिप सिलेक्ट, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, लेट्स सपोज, तो दोनों से भी मतलब डेटा आ जाएगा मेरे को, आई एम हैप्पी, मतलब 16 बिट डाटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है? बट नेक्स्ट प्रॉब्लम किधर हुआ पता है? अरे प्रॉब्लम हुआ इसमें, समझो ये सब कितना बहुत सोच समझ के किया है, बहुत बहुत सोच समझ के किया सब, ऐसे इतना इजी नहीं है एक्चुअल में ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम किधर आएगा पता है? वो व्हेन आई 19 जस्ट वांट टू, हाँ बोल बोल बोल। 19 और 20 बिट, 92? वो 19 बिट्स ही होएगी ना, A1 2, बट 20 बिट का एड्रेस जो हाँ, रहता है। अरे मतलब यूपी से आते वक्त 20 बिट का लाइन से आएगा, समझ, बट ये में लाइन कनेक्ट ही नहीं करेगा, समझ में आ रहा है क्या? तो म्यूपी का इशू नहीं, म्यूपी इशू करते वक्त 20 बिट का एड्रेस करेगा, और ये लाइन मैंने कनेक्ट नहीं किया है, खत्म, समझा क्या? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट, समझो बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा है, पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मूड आ गया, ठीक है? let it be. Now the next problem is that now let's suppose, अब मुझे करना क्या है, मुझे जस्ट इवन बैंक के एक ही लोकेशन का डेटा चाहिए, दूसरे बैंक का चाहिए नहीं, if you want to do the 8 bit का ऑपरेशन, because 886 is capable of 8 bit का ऑपरेशन as well, ठीक है? अब मुझे जस्ट इवन बैंक का ये पर्टिकुलर लोकेशन का डेटा चाहिए, इधर का चाहिए ही नहीं, अब क्या करो? बिकॉज इट मे हैपन ना, बिकॉज वो इसके लिए तो अपने एच एल वगैरह सब डिवाइड किए टू डू दैट 8 बिट का ऑपरेशन आल्सो, ठीक है? नाउ आई वांट टू जस्ट फेच ये 8 बिट का डेटा इवन लोकेशन से, इसको नहीं करना है, अब वो नहीं पॉसिबल हो सकता फिर, इफ आई जस्ट डू लाइक दिस वन, मतलब एक एड्रेस पास करेगा इधर से और इधर से, दोनों जगह से डेटा आएगा, समझ में आएगा अगर मैंने CS ग्राउंड करके रखा है तो, गेटिंग इट? ठीक है, बट अब मुझे करना क्या है, आई जस्ट वांट टू एक्सेस 8 बिट का, तो वो भी पॉसिबल होना चाहिए, मतलब व्हेनेवर वी रिक्वायर द 16 बिट का लोकेशन, 16 बिट का डेटा वो भी आना चाहिए, एंड व्हेनेवर आई नीड ओनली 8 बिट का डेटा, तो वो भी आना चाहिए। इफ इट इज द ऑड लोकेशन तो आएगा, बट इफ इट इज द इवन लोकेशन ना, तो नहीं आएगा। तो वो दो, अगर आप दो भी वांट 8 बिट का डेटा, वो फोकट में 16 बिट का देता, अब इधर अटक गए फिर से वो लोग, साइंटिस्ट लोग, अब इसको कैसे रिजॉल्व करने का, इसको कैसे सर वो रिजॉल्व? A0 बिट एंड BHE बिट से रिजॉल्व होगा. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है? अब उसके लिए उन्होंने क्या किया पता है, मतलब वो 8 बिट का वगैरह, अब दिस इज द लास्ट टिप,
ठीक है, लास्ट है मेमोरी बैंकिंग। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, दे जस्ट मेड लाइक दिस वन, ये मेरा मेमोरी है, एक अलग मेमोरी है। ठीक है, दोनों में 512 KB के, दोनों में 512 KB के। ठीक है, हियर वी हैव गिवन द एड्रेस लाइन, एक्चुअली वी हैव A1 to A90 ना, यहाँ पे भी एड्रेस लाइन A1 to A90। ठीक है, यहाँ पे डेटा लाइन रहेगा इफ इट इज इवन बैंक D0 to D7 बिकॉज इवन एड्रेस कभी भी लोअर डेटा देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज ऑड बैंक, दिस इज D8 to D15। तो मैंने 20 बिट का एड्रेस लाइन इंटरफेस किया, 60 बिट का डेटा लाइन। ठीक है, अब मेरा प्रॉब्लम क्या था, कि व्हेनेवर आई वांट दैट इवन बिट का, इवन लोकेशन का सिर्फ 8 बिट, तो अब ये फोकट में इधर से भी आ रहा था। अब मैंने क्या किया, वो जो A0 लाइन निकाल के रखा है ना मैंने, अब मैंने यूज किया कैसा, ये जो CS बार है, CS बार मतलब क्या, CS बार पता है, व्हाट इज द CS बार, व्हाट इज CS बार? Hey guys, please answer यार, what चिप is CS सिलेक्ट। bar? या चिप सिलेक्ट, इज चिप सिलेक्ट, इज चिप सिलेक्ट सिग्नल, मतलब ये इसका मेन स्विच है, जब तक ये ऑन नहीं होता ये बाकी सब कुछ काम नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है क्या? ये चिप सिलेक्ट मतलब इफ यू वांट टू एक्सेस और डील विद दिस पर्टिकुलर मेमोरी, ये पहला मेन स्विच ऑन होना चाहिए, तब बाकी सब कुछ तो काम का है, अदरवाइज कुछ काम का नहीं है। ठीक है, मतलब अपने घर में कैसे रहता है, मेन स्विच होता है, सब स्विच होते हैं। ठीक है, अगर मैंने मेन स्विच बंद कर दिया, ये सब स्विच को ऑन ऑफ कर, कुछ होगा क्या, कुछ होगा क्या? नहीं। नहीं, so नहीं। likewise, so if you want to just मतलब access the data and all ना, first thing is that ये main switch on होना चाहिए। अब इन्होंने दिमाग क्या लगा, A0 निकाल के रखा ना, छोड़ इसको इधर लगा, ये CS बार को इन्होंने A0 लगाया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या था कि इधर एक्चुअली ऑल बैंक को लगाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसके लिए एक सिग्नल इन्वेंट किया व्हिच इज कॉल्ड BHE बार, एक सिग्नल बनाया व्हिच इज कॉल्ड BHE बार। ठीक है, अभी देखो कैसे हो रहा है, अभी देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज ये A0 और BHE कैसे काम करते हैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन एंड ऑल, मतलब वो कंट्रोल सिस्टम सब सिग्नल डिसाइड करते हैं क्या करने के। अभी आपको इंस्ट्रक्शंस पता नहीं है, ठीक है, लेट इट बी। अब देख कैसे होता है, नाउ लेट्स सपोज इफ आई वांट टू जस्ट एक्सेस द डेटा फ्रॉम अ इवन लोकेशन, मतलब फ्रॉम 00000 लोकेशन। ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू एक्सेस फ्रॉम 00001 लोकेशन। अब कैसे होता है, देख अब कैसे होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इफ आई वांट टू एक्सेस फ्रॉम दिस वन, मतलब लेट्स सपोज मेरा ऐसा इंस्ट्रक्शन है कुछ, तो मूव AL कॉमा ब्रैकेट में 0000, ये अगर इंस्ट्रक्शन आपको पता रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज बाद में आएगा। ठीक है, सो हियर आई हैव गिवन दैट ओनली this is the address, optional address we are given, and the destination is of 8 bit. Now what it says, we want to fetch only 8 bit का डेटा। समझ दोनों में डिफरेंस क्या है, इंस्ट्रक्शन देखो कैसे एग्जीक्यूट होता है, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। ठीक है, एंड अनदर इंस्ट्रक्शन व्हिच आई एम हैविंग इज लाइक दिस वन, मूव AX कॉमा, अच्छा ये दोनों में फर्क क्या पता है किसी को, मूव AL कॉमा दिस वन एंड मूव AX कॉमा दिस वन, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू? एक 8 बिट का, एक 16 का। Perfect. Now in this case, we want to have 8 bit data only because AL is of 8 bit. So I want the data at 000 location only. But whenever I say move X comma something, I want data at 000 location as well as 001 location. समझ में आ रहा है क्या? Are you getting it? I want मतलब 001 लोकेशन का भी इसमें because ये 16 बिट है X। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या था, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता था, बट इसका प्रॉब्लम होता था, ये फोकट में मतलब 16 बिट का डेटा उठा के लेके आता था, इधर रहता ही नहीं, तो फिर एरर आता था अपने को। तो वो रिजॉल्व करने के लिए ये किया, अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे CS बार को इधर A0 लगा दिया और CS बार को इधर BHE बार लगा दिया। अब BHE बार कैसे होता है समझो, BHE बार का काम क्या रहता है, दैट इज जस्ट लाइक, मतलब BHE बार 0 कब होता है, बिकॉज दिस आर द एक्टिव लो समझता है ना, बार का मतलब समझता है ना, यस सर, मीनिंग ऑफ बार, यस सर। यूपी का बार, जब भी 0 सिग्नल आएगा वहाँ पे तभी एक्टिव होगा। yeah, so that's why it is called the active low, means to activate this one we require a zero signal। ठीक है, अब ये BHE बार का फंडा क्या है, now this will be 0 when we are doing a 16 bit cooperation, this will be 0 when we will be doing a 16 bit cooperation and when we want to access the data from the odd location। ठीक है, तो ये दोनों टाइम पे 0 रहेगा, अदरवाइज 1 जाएगा। ठीक है, so these are the two conditions for the BHE bar, whenever we want to access 16 bit का data at a time then BHE bar will be 0। ठीक है, and whenever we want to access 8 bit का data from a odd location, then at that time also it will be the 0। that is what the BHE bar का function is, बस आने पर। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, now if you want that, अभी देखो समझो, अब if I want to access the data from the 0000 location, odd बैंक से चाहिए मुझे, सॉरी even लोकेशन से चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, now that A0 is connected over here, now we want to access the 8 bit का data ना from the even location, we want to access the 8 bit का data from even, and whenever I say the even means what, A0 क्या रहेगा उसका, if I say the even location, what will be the A0,
किसी भी इवन नंबर का Zero. A0 क्या रहेगा या 0 रहेगा ना, Zero. ठीक है। तो जैसे बजे 2, इफ आई जस्ट कंसीडर 2 को मैंने एक्सपांड किया 0 0 1 0, लास्ट में क्या क्या मिल रहा है 0 ना, इसको तो A0 बोलते हैं, ठीक है। इफ आई टेक 4 मतलब क्या 0 1 0 0 ना, लास्ट में A0 वो क्या है 0। इफ आई टेक जैसे 8 1 0 0 0, ये लास्ट में क्या है 0, तो A0 इवन केस के लिए 0 रहेगा, ठीक है। सो मींस व्हाट देना से मूव AL, 0 0 मैं माय A0 is 0, मतलब इधर मुझे 0 मिला, मतलब ये वाला चिप चालू, मतलब इधर से तो डेटा पक्का आएगा। बट अब ये बीच बार बोलता है मैं कब 0 रहेगा, जब मुझे 60 मिनट का डेटा एक्सेस करना, मतलब मूव एक्स वगैरह ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो, अदरवाइज और लोकेशन, बट ये दोनों में से नहीं है, तो फिर ये क्या आएगा इधर, BH बार विल बी 1, एंड अगर BH बार 1 है मतलब क्या, एड्रेस एक्चुअली दोनों को मिलेगा, समझो, बिकॉज़ एड्रेस सेम शेयर किया इधर और इधर भी, बट एज आई टोल्ड इसका मेन स्विच ही बंद है, तो मतलब इधर में 1010 का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे डेटा आएगा ही नहीं है, समझ में आ रहा है, जैसे इधर से ही आएगा। आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है Yes. क्या, ठीक है। सो जस्ट इधर से 8 बिट आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज इफ आई से लाइक दिस वन मूव एल कॉमा ब्रैकेट 00001, ऐसे अब क्या होगा बोलो, ये केस में 0001, ये केस में क्या होगा, मूव एल कॉमा ब्रैकेट 0001, ये केस में क्या होगा, वैसे रन होगा। कौन कौन दिमाग लगाओ, आज मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ, ये केस में क्या होगा, ये ये समझो केस में मेरे को जब, A0 हाँ बोल, रीसेट होएगा। या A0 विल बी 1 ना, अगर A0 1 हाँ है मतलब क्या, मतलब एड्रेस एक्चुअली दोनों को जाएगा, दोनों के पास 001 लोकेशन एक्चुअल में रहेगा, ठीक है। बट ये क्या बोलेगा, मेरा A01 है मतलब ये बंद, ये तो मतलब एक्शन में नहीं आएगा, ये मतलब डेटा ही नहीं देगा। अब ये चालू रहेगा, क्यों, बिकॉज़ 8 बिट का डेटा हैंडल कर रहे हैं ना अपन, वी आर एक्सेसिंग एंड दैट इज ऑफ और लोकेशन, मतलब मैंने बोला कि और लोकेशन के लिए 0 था, ये BH बार अपने आप 0 हो जाएगा, मतलब ये चालू होगा, सिर्फ इधर से ही डेटा आएगा, इधर से नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। एंड नाउ इफ आई से लाइक दिस वन मूव x, 0000, अब क्या होगा, मूव x, 0000, अब क्या होगा, दोनों लोकेशन से यस लेगा। अभी एज दिस इज द इवन एड्रेस, मतलब A00 मतलब ये भी चालू, एंड एज वी आर एक्सेसिंग 16 बिट ऑफ डेटा, ये बोलते हैं ये भी चालू, मतलब ये दोनों से डेटा आएगा, समझ में आ रहा है, सब प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आर यू गेटिंग इट, जैसे चाहिए वैसे अपन एक्सेस कर सकते हैं अभी। आर यू गेटिंग इट नाउ, हैव यू अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट, एनी डाउट टू एनीवन, Sir, हाँ बोल। sir वो ऑड बैंक का फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का ये क्या है, डेटा एड्रेस क्या है? 000 ही रहेगा एक्चुअल में 00 रहेगा, 000 ही रहेगा, इधर भी 000 ही रहेगा, बहुत सारे इधर भी 001 00001 ऐसे ही रहेंगे। सर तो फिर ये सेकेंड केस में जब भी मूव AL, 0001 किया, कौन सा वाला, ये यहाँ पे इवन बैंक के ऊपर, ये वाला, हाँ ओके। तो ये 0001 तो मतलब भी दोनों बैंक में है ना? हाँ बट मतलब ये वाला लोकेशन एक्सेस होगा, बट क्यों होगा देखना, ये 0001 है ना, मतलब ये एक्चुअल एड्रेस है, तू एक्सपांड करेगा तो क्या बनेगा, 001 को मैं एक्सपांड करूंगा ऐसा बनेगा ना, बट ये में 1 निकाल दे रहा है ना A0 में से, हाँ यस। समझा क्या, तो मतलब 00 ही बना, मतलब ये लोकेशन से डेटा आएगा, समझा, समझा कि नहीं, यस सर। समझा, गेटिंग इट, ठीक है। सो दिस इज द कांसेप्ट, मैंने बहुत बहुत डीप में लेके आपको मजाक मजाक में, ठीक है। सो दिस इज ऑल द कांसेप्ट ऑफ मेमोरी बैंकिंग। सो मेमोरी बैंकिंग इज व्हाट डिवाइडिंग द मेमोरी इनटू टू पार्ट, इवन बैंक एंड ऑड बैंक, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज इवन बैंक ऑड बैंक, समझा, बिकॉज मेरे लिए मतलब मेरे लिए यहाँ पे सब इवन एड्रेस होंगे, मेरे लिए इधर ऑड एड्रेस होंगे, बट एक्चुअल में 001 2 3 ऐसे ही रहते हैं कभी भी, समझो, ठीक है। हाँ बट मेरे लिए अब ये इवन बैंक बनेगा, मेरे लिए ऑड बैंक बनेगा, फाइन, ठीक है। एंड व्हाई यू वांट टू, बिकॉज़ वी वांट टू यूज अ 16 बिट का डेटा का फुल यूज, मतलब एट अ टाइम दोनों भी आना चाहिए, उसके लिए सब मगजमारी किया। अभी एनी डाउट किसी को भी कुछ भी, बिकॉज़ मैंने बहुत बहुत भारी वाला फंडा समझा आपको, ठीक है। एनी डाउट टू एनीवन, अदिति, अदिति करके कोई तो है ना, रेडी भी, अंजलि, अंजलि शिंदे, Yes, sir. एनी डाउट, अंडरस्टूड द फंडा, साइमा, साइमा एनी Yes, sir. डाउट, पक्का No, समझे, no, sir. Yes, okay, yes, because sir. you do not have that 86, that's why I'm asking, okay, Yes. fine, सर, yeah, हाँ बोल, सर एक डाउट है। बोल बोल बिंदास जल्दी बोल। सर जब भी सिर्फ 8 बिट का ऑपरेशन रहेगा और ऑड बैंक से यूज करना रहेगा, हाँ तभी D7 to
मतलब D8 to D15 लाइन यूज होगा क्या? यस, D8 to D15 होगा। ओके तो फिर इतना ही डेटा लाइन यूज होगा। कीप इन माइंड, इधर अपने D0 to D15 D0 to D15 ऐसा नहीं दिया, डेटा लाइन ऐसे डिवाइड कर दे, बट एड्रेस लाइन ऐसे ही जाता है, दोनों को सेम जाता है। सेम मतलब ये ऐसे जाता है, ये इधर से ये सेम कनेक्शन उठा के इधर देते हैं। आपने अगर मैं तो एक्चुअल में आपके साथ 8086 सब बनाने में लग जाओ ना, मतलब वो बोर्ड बनाने में लग जाओ, तब आपको समझेगा ज्यादा। बट फिलहाल समझो, और इधर एक्चुअल में दो डिफरेंट सेट ही रहते हैं, ये दोनों में कनेक्शन कुछ नहीं रहता। समझा क्या? सो यहाँ पे जस्ट D8 to D15 ही काम में आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग मेमोरी बैंकिंग एंड मेमोरी सेगमेंटेशन। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नोट्स आल्सो, मतलब थोड़ा आइडिया देता हूँ तो आपको याद रहेगा क्या क्या किया है। ये नोट्स, so this is a memory banking, I just written everything। 86 and 6 MB का डेटा लाइन वो सब एक्सेस करने के लिए वो सब करते हैं। ठीक है, you can just see then 1 MB ये 512 इसको बोलते हैं ऑड बैंक, इवन बैंक, क्यू वो भी समझेगा। इसको एक्सेस करने के लिए BHE भर रहता है, A0 एंड वो सब दिया है इधर। ठीक है, बस इधर खत्म। ये होगा तुम्हारा मेमोरी बैंकिंग। है तो एक्चुअली 1 पेज का ही नोट, और फंडा समझो ये सब क्या चीज, क्या सोचो, मतलब कैसे दिमाग लगाया, कैसे सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो सब पता होना चाहिए एज एन इंजीनियर, नहीं तो फिर मजा नहीं है। ठीक है, so that is all regarding this memory banking। now the next part, minimum mode and maximum, मतलब बहुत कुछ लेना है मेरे को। do you know the pins of 886, pin diagram of 886? नो सर याद पता है तुम्हें, फटाफट वो कवर कर लेगा। नहीं। ठीक है, चलो समझो फटाफट। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट इज, और अभी 886 का पिन डायग्राम देते हैं जो 40 पिन है। ठीक है, आप लोग मैं बता देता हूँ तब मुझे समझेगा मतलब कितना पता है आपको, अदरवाइज मींस आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन द नोन थिंग, उसमें मजा नहीं है ना, जो पता है उसको बार बार बता रहे। ठीक है, या सो दिस इज द 886 का पिन डायग्राम। यू मे जस्ट रिफर एनी डायग्राम, दिस इज जस्ट अ सॉर्टेड वन। सॉर्टेड मतलब कि इधर जस्ट कंबाइन किए 80 to 8015 लाइंस वगैरह। ठीक है, दिस आर द कंबाइंड वन, नथिंग एल्स। इफ यू वांट टू हैव दैट एक्चुअल 40 पिन का डायग्राम तो वो भी है, you can just go to the internet। अरे यार shit, ब्राउजर बंद है नहीं, चलो you can just type in 6। yeah, you can just consider this particular diagrams also, pin diagram, but वो थोड़ा sorted है on page, combine किए है, इससे देखते हैं। yeah, I hope you can see, so this is a actual 40 pin का diagram, but what I've done, ये जो AD0 AD वगैरह है इनको सब combine करके AD0 AD15 लेके हैं। ठीक है, जो भी सिमिलर है उनको जस्ट कंबाइन किया, बाकी कुछ नहीं किया। गेटिंग इट? ठीक है, अदरवाइज यू कैन जस्ट रिफर टू दिस पेंटाग्राम आल्सो, नो प्रॉब्लम, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग ऑन द सॉर्टेड वन, एज आई टोल्ड यू कैन जस्ट रिफर एनीथिंग। फाइन, सो लेट्स सी द पिन डायग्राम ऑफ 886 नाउ। पिन डायग्राम ऑफ 886 एक्चुअली इसमें कैसे पता है, एज आई टोल्ड 886 ऑपरेट इन टू मोड। ठीक है, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड, इस तरह टू मोड्स। ठीक है, अब इसमें कैसे, ऑल द पिन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। दिस इज माय डिवीजन है, इट्स नॉट एक्चुअल, मतलब किसी बुक में नहीं मिलेगा, जस्ट ये मेरा डिवीजन है। ठीक है, द पिन्स व्हिच विल रिमेन सेम इन बोथ द मोड, मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम मोड, द पिन्स व्हिच एक्ट इन अ मिनिमम मोड एंड द पिन्स व्हिच एक्ट इन अ मैक्सिमम मोड, ऐसे मैंने डिफाइन किया, डिवाइड किया। ठीक है, वन पार्ट which is a common for the कौन सा भी मोड होने दो, वो पार्ट सेम रहेगा। सेकंड पार्ट, दिस आर द स्पेशल पिन इन मिनिमम मोड, एंड थर्ड पार्ट, दिस इज स्पेशल पिन इन मैक्सिमम। that is how I divide the pin diagram। ठीक है, because whenever I just switch from minimum mode to maximum mode, होता क्या है, the pins देखो, these are the 8 pins which are there। अब ये मिनिमम मोड रहेगा तो ऐसा ऐड करेंगे, एंड अगर मैक्सिमम मोड रहेगा तो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ दैट, ये वाला। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, वो उनका जस्ट फंक्शन चेंज होता है, सेम पिन का ही फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई डिवाइड लाइक दिस आर द पिन्स, ये वाला इधर जो देख रहे हैं आप इधर से, ये तो ये दिस आर द पिन्स व्हिच आर रिमेनिंग कॉमन, ये वाला पिन्स दिस आर फॉर द मिनिमम मोड, एंड दिस आर द पिन दिस आर फॉर द मैक्सिमम मोड। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पिन्स व्हिच विल रिमेन कॉमन, मतलब ये वाला पार्ट इधर से लेके ये राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ VCC ग्राउंड एंड ग्राउंड? अभी आप लोग फटाफट बताओ, ये VCC आईसी ग्राउंड को का यूज क्या? सप्लाई देने के लिए। सप्लाई देगा। ठीक है, अभी इसमें इधर एक Supply। क्वेश्चन है, कैच है, दो ग्राउंड क्यों रहते हैं 886 को? Because normally if I see the IC na one ground is sufficient, but in 886 we have two ground. Why? Guys, mute full of concept है, हर एक चीज के पीछे रीजन है।
Why there are 2 ground in 886? दो मेमोरी फिजिकल डिवाइड है ना, Sorry? ऑड इवन बैंक करते हैं. नहीं, अरे मेमोरी बैंक एक्चुअली बाहर रहता है, हम यूपी में नहीं रहते वो. ऑड इवन बैंक के लिए तो फिर 2 बीसीसी रखना, फिर ग्राउंड 2 क्यों है? चलो वन सेकंड, ये क्वेश्चन टू यू. तो नॉर्मली दिस इज माय हैबिट कि कुछ ना कुछ तो टास्क देता हूँ मैं आप लोगों को. अब वो करना नहीं करना आपके इसमें, मतलब मैं नहीं फोर्स करता कभी. आपको अगर सीखना है तो करो, नहीं तो मत करो, मेरा कुछ नहीं जाता. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन टू यू, व्हाई वी डू हैव अ 2 ग्राउंड इन 886? कहेंगे ये आपको ढूंढना है. व्हाई डू वी हैव 2 ग्राउंड? फाइन, ओके. देन व्हाट इज द यूज ऑफ एनएमआई? एनएमआई एंटीआर पता है? Non-maskable interrupt. Perfect. ठीक है. So these are the interrupt pin. This NMI and INTR. These are the interrupt pin. मतलब for any process in the controller, yes, there are mostly the interrupt pins to interrupt that particular thing. Getting it? ठीक है. So here we are having 2 NMI and INTR. अभी दोनों में difference क्या बताया गया NMI and INTR में? सर INTR को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं. Okay. ठीक है. मतलब कैसे? NMI मतलब क्या? कि इज नॉन मास्केबल, वी कैन नॉट मास्क देम, वी कैन नॉट अवॉइड देम. ठीक है. एंड INTR मतलब क्या? इस इंटर सादा वाला इंटर उसको मैं मास्क भी कर सकता है. मतलब इंटरप्ट मतलब क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड इंटरप्ट? डू यू अंडरस्टैंड इंटरप्ट? यस सर. या व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्ट? मतलब इंटरप्ट होता क्या, काम क्या, मतलब क्या रहता है, फंडा क्या इंटरप्ट? अरे बताओ. Sir, it is a type of signal. इट इज Type of signal, na? One kind. सिग्नल है. ठीक है. इंटरप्ट मतलब क्या? यूपीआई कुछ तो बीच में काम करे, उसको टोकने का बीच में, वही होता है इंटरप्ट. ठीक है. तो टोकने का काम करता है बीच में. ठीक है. अब इसमें कैसे रहता है ना, देयर आर 2 काइंड ऑफ इंटरप्ट, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल. मास्केबल मतलब क्या? इफ यू वांट यू मे अवॉइड इट, एंड नॉन मास्केबल मींस दैट यू कैन नॉट अवॉइड इट. मतलब कैसे बताएं? लेट्स सपोज आई एम यूपी एंड आई एम जस्ट टीचिंग यू, मतलब आई एम प्रोफेसर, आई एम टीचिंग यू. ठीक है, चालू है. बट लेट्स सपोज मेरे मोबाइल पे कॉल आया. समझो मोबाइल पे कॉल आया. अब मोबाइल पे कॉल मतलब मैं जो काम करूं उसमें इंटरप्ट है ना. गेटिंग इट? ठीक है. बट इफ आई वांट आई कैन जस्ट कट इट ना. आई विल जस्ट आंसर लेटर ऑन. मतलब क्या, मैंने उसको मास्क किया. आर यू गेटिंग इट? समझ रहे हैं? यस. ठीक है. तो आई कैन कट इट. बट लेट्स सपोज अनदर इंटरप्ट, अगर लाइट गया तो मैं बोलता हूँ लाइट गया, चल रुक, उसको बाद में जाने दे, मैं पहला सीखा था. वैसा होएगा क्या? नहीं ना. नहीं. तो वो नॉन मास्केबल. अगर लाइट गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता. लेक्चर स्टॉप, मतलब मेरा मेन एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा. गेटिंग इट? मतलब उसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा फिर. ठीक है. हाँ, बट किसी का मतलब कॉल आ रहा है तो नाउ दैट इज इन माय हैंड, मतलब मेरा लेक्चर में थोड़ा पॉज करके उसको आंसर करो, अदरवाइज नहीं करो. मतलब मेरे पास ऑप्शन है. बट अगर लाइट गया तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं, मेरे को मेरा लेक्चर स्टॉप करना ही पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? मास्केबल और नॉन मास्केबल. अंडरस्टूड? Yes. Okay, so that NMI means for non-maskable, means if interrupt come on this particular pin, UP cannot avoid it. And if interrupt come on this particular pin, UP can avoid it. Saima, if you have any doubt, then please ask her. ठीक है. Yeah. Then we are having a test bar. अब ये test bar signal क्या है? This is actually used in multiprocessor mode. You can just read this later on because ये सब हर एक पिन का मैंने description full दिया है. इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, जस्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. इसलिए आई एम नॉट वेस्टिंग मच टाइम ऑन दिस वन. ठीक है. So test bar is what? This is the signal which is actually used in interfacing with the multiple processor or the maximum mode to check whether the बाजू वाला processor busy है कि नहीं. ठीक है. That is what the function of this test bar. Then what is the function of clock reset ready? इनका काम क्या रहता है? What is the Provide करते clock. sorry? Clock through pulse provide करते ना. Perfect. Clock signal is used to provide a clock to the IC. Keep in mind for any digital IC, yes, it work on a clock because वो 01 का reference चाहिए तो clock चाहिए ही चाहिए. ठीक है. So you will give a clock on this one. Reset का use क्या होता है? रीसेट कर देने का. Yeah. Reset मतलब क्या होता है? पूरा सब जीरो हो जाता है. हाँ, but इसमें क्या है? Now whenever I apply reset signal ना, whatever there inside it. Yes, yes, yes. होता है रीसेट करने के बाद. Sorry. और रीसेट करने के बाद स्टार्टिंग से एग्जीक्यूशन होता है. Okay, starting से execution होता है. Okay, fine. Anything else? Actually starting से नहीं होता है 886 में. अलग है 886 एक अचीवमेंट है, लिटरली खतरनाक चीज है. या अभी इसमें कैसे व्हेनेवर आपने द रीसेट, रीसेट का मतलब क्या होता है? व्हाटएवर देयर इनसाइड 886. अब इनसाइड 886 मतलब कि जो आपने आर्किटेक्चर में देखा है, रजिस्टर्स वगैरह सब कुछ, वो सब जीरो हो जाते हैं. सबका वैल्यू जीरो बनेगा. बट एक्सेप्ट सीएस रजिस्टर कोड सेगमेंट, उसका वैल्यू एफएफ होता है.
FFFF, ठीक है। जो कोर सेगमेंट रजिस्टर देखा है अपन ने आर्किटेक्चर में, CS रजिस्टर, सब रजिस्टर का वैल्यू 0 बनेगा, बट अकेला CS है उसका वैल्यू FFFF बनता है। अब ये क्यों बनता है पता है क्या? नो एनीवन? पता नहीं। Why it सर वो becomes FFFF? हाँ, FFFF 0 से BIOS ROM कनेक्ट परफेक्ट यू नो, बिकॉज जो अपना बूटेबल प्रोग्राम रहता है, जो बायस का प्रोग्राम रहता है, वो एक्चुअली FFFF 0 पे रहता है, 86 का। तो दैट्स व्हाई जब रीसेट मारते हैं तो CS FFFF होता है, ठीक है। गाइस म्यूपी में हर एक चीज के पीछे रीजन है, आपको पता होना चाहिए वो सब क्यों है, तब यू विल फील लाइक यस आई एम सर मास्टर मतलब इन। उसका स्टार्टिंग FFF है क्या? यस, वो कभी 0 पे स्टार्ट टॉप करता से ही नहीं स्टार्ट है, होते हैं। वो स्टार्ट FFFF 0 पे करता है, एंड उसके बाद जंप किधर भी करेगा, बट पहला स्टार्ट वो FFFF 0 पे करता है। सर वो स्टैक पॉइंटर भी वही है ना? क्या? मींस स्टैक पॉइंटर का भी एट टॉप ऑफ द लोकेशन से हाँ start है ना? हाँ, बट वो अलग चीज है, स्टैक पॉइंटर वो रिसेट पे वगैरह, मतलब वो अलग चीज है, वो जब रिसेट मारेगा तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। हम्म, स्टैक पॉइंटर पे 0 होता है। स्टैक पॉइंटर स्टैक ऑपरेशन में क्या होता है, जब स्टैक ऑपरेशन देखेंगे पुश एंड पॉप, देन वी विल सी वो स्टैक वगैरह कैसे काम करता है, ठीक है। बट व्हेन आई अप्लाई रिसर्च इन कीप इन माइंड ऑल द रिसर्च बिकम 0 एक्सेप्ट CS का लोकेशन भी FFF, एंड वो क्यों होता है? बिकॉज 86 का जो बायस प्रोग्राम बोलते हैं ना अपन, बायस मतलब क्या बोलेंगे आप, मतलब क्या कैसे समझेंगे, बूटेबल प्रोग्राम वगैरह बोलते हैं ना, मतलब या इज सिंपल, व्हेन यू टर्न ऑन द PC, जब PC टर्न ऑन करते हो, एक्चुअल में आप कुछ प्रोग्राम वगैरह रन करते हो क्या पहले? तो उसमें एक बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम रहता है चिप में, जो मतलब आता है ना, वो विंडोज ऐसा दिखाता है, बाद में यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए पूछता है, अरे उसके लिए भी कुछ तो प्रोग्राम रन होना पड़ेगा ना, आर यू गेटिंग इट? यस एंड दैट प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द बायोस, मतलब वो एक बार एंटर कर, हाँ एक बार PC चलेगा, बाद में तेरे को जो करना है कर, किधर भी जा, कौन से भी लोकेशन पे, कौन से भी ड्राइव में वगैरह, ठीक है। बट स्टार्टिंग में जो वो जो चाहिए उसके लिए भी तो कुछ प्रोग्राम रहता है, उस टाइम तू कुछ नहीं करता, वो जो इंटरनल स्टोर्ड प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, उसको बोलते हैं वो बायोस का लोकेशन। सो इसका 86 का बायोस लोकेशन FFF 0 होता है, सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई रीसेट CS का वैल्यू FFF होता है। एंड गाइस कीप इन माइंड, ये जो ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है ना, ऐसे फोकट में नहीं दे रहा, ये सब में वाइवा में पूछेगा। अपना म्यूपी का वाइवा बहुत खतरनाक होता है, अपने बच्चों से पूछना चाहिए। तो इफ आई एम देयर देन रियली, बिकॉज मैं सब ऐसा इजी इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे फंडामेंटली पूछेगा सब, कंसेप्ट वाला, ठीक है। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू, इफ आई एम देयर इन माय देन आई विल श्योरली आस्क सच क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाई इट इज देयर, अपना ऐसा नहीं कि व्हाट इज होल्ड, इसका काम क्या, नहीं, अपने सब व्हाई क्वेश्चंस रहेंगे, व्हाई इट इज सो, गेटिंग इट, ठीक है। या डेट बी, सो देयर इज द यूज ऑफ रीसेट, व्हाट इज द यूज ऑफ रेडी? रेडी पिन क्यों यूज सर होता है? it is used to interface with slower peripheral. वेरी गुड, ठीक है। इट इज एक्चुअली यूज्ड टू इंटरफेस एंड मैनिपुलेट द स्लोअर पेरिफेरल, ठीक है। हैव एवरीवन अंडरस्टूड? किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये थोड़ा बहुत पता रहेगा। इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड, इफ यू डू नॉट नो, देन प्लीज रेज योर हैंड, सर मेरे को नहीं पता है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। एनीवन लाइक कि रेडी समझ में नहीं आता? सर नहीं पता। एनीवन इज नॉट गेटिंग इट, प्लीज सर आस्क। हाँ बोल रेडी का नहीं प्रवेश। पता। अच्छा चल ठीक है, वो रेडी बता दो, देखो अभी देखो Yes, मेरे sir. स्टाइल में बताता हूँ, ठीक है। बस आई डोंट नो एक्चुअली वांट टू वेस्ट टाइम, जो पता है उसको फटाफट आगे जा रहा हूँ मैं, हाँ पर जो नहीं रहेगा तो बोलो, ठीक है। अभी देख रेडी क्या होता है, लेडी इज एक्चुअली यूज्ड टू वर्क न्यूपी विद द स्लोअर पेरिफेरल, 86 विद द स्लोअर पेरिफेरल, ठीक है। 86 विद स्लोअर पेरिफेरल। अब ये कैसे रहता है समझो, अभी ये रेडी पिन कैसे रहता है, ठीक है। अब ये रेडी ना, इफ यू सी द रेडी पिन हियर, this is the input to the म्यूपी को इनपुट है, ठीक है। किधर है, सॉरी, ये म्यूपी है, अनलेस सपोज ये मेरा स्लो पेरिफेरल, और गिव द एग्जांपल, जो आपको मतलब जो समझ में नहीं आता वो पूछो, मैं उसको एग्जांपल देता हूँ, अदरवाइज मैं हर एक का बताने बैठेगा तो टाइम जाएगा बहुत, ठीक है। सो ये 86 है और ये पेरिफेरल है, इट मे बी एनी पेरिफेरल ना, ठीक है। तो अभी होता क्या ना, दिस इज अ रेडी पिन। Now, what is the function of ready pin? कि it is actually used to interface MIPI with the slower peripheral. That is only what you have to write. बस इतना ही लिखना है. But समझो अभी चीज के. It is actually used to interface the 86 with the slower peripheral. अब ये चीज के, if I just give the example, समझो, ठीक है? Let's suppose this is my computer, ठीक है? And this is my printer. ये मेरा कंप्यूटर है और ये मेरा प्रिंटर है। कंप्यूटर में ले सपोज आई डू हैव अ i7 रैम ऑफ 8 GB वगैरह, और इधर मेरा एक सादा सा प्रिंटर है अपना जो कैनन का रहता है ना, वो वाला प्रिंटर है, समझो ट्राई, ठीक है। नाउ दिस इज वन पेरिफेरल ना, जिसमें से कंप्यूटर, मतलब वी आर गोइंग टू इंटरफेस विद दिस वन, मतलब ये इसके साथ कनेक्ट किए, समझो कनेक्ट किए, इंटरफेस मतलब क्या कनेक्ट करना,
ठीक है। बट नाउ कीप इन माइंड, अभी होता कैसे, नाउ दिस इज अ कंप्यूटर विद i7 8 GB रैम एंड ऑल, फास्टर है, बहुत फास्ट है। एंड दिस इज सादा वाला प्रिंटर जो थोड़ा स्लो है, ये स्लो पेरिफेरल है, ये फास्टर है, ठीक है। तो यूपी ऐसे नहीं बोलेगा तू स्लो है, मैं तेरे साथ काम नहीं करेगा। आर यू गेटिंग इट? ही विल नॉट से कि मतलब यार तू मतलब तेरा स्पीड मेरे से मैच नहीं होता, तेरी औकात नहीं है मेरे साथ काम करने की, प्लीज डू नॉट वर्क विद, ऐसा नहीं करेगा वो, ठीक है। इट विल जस्ट हैंडल दिस वन आल्सो, इट विल ट्राई टू कम्युनिकेट, इट विल ट्राई टू डू द वर्क विद दिस वन आल्सो। बट कैसे, अब देखो कैसे होता है, लेट्स सी, ठीक है। अब मुझे करना क्या है समझो, ये रेडी पिन का फंक्शन क्या है, जस्ट एक्सप्लेन द रेडी पिन, लेट्स सपोज ये रेडी है, ठीक है। होता क्या है, लेट्स सपोज अ कंप्यूटर, दिस इज अ प्रिंटर, लेट्स सपोज मेरा म्यूपी का नोट्स है, अपना पीडीएफ का जो फाइल मैंने दिया है नोट्स है, ठीक है, आपने इधर ओपन किया, ठीक है। इफ यू जस्ट स्क्रॉल इट डाउन तो फटाफट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब पेज आ जाएंगे ना, यस और नो? yes. ठीक है। सो मतलब दिस प्रोसेस दैट मच फास्ट, इट कैन प्रोसेस एंड फटाफट आपको पेज देगा, ठीक है। बट इफ आई जस्ट गिव अ प्रिंट कमांड टू दिस वन, तो फटाफट सबके सब पेजेस एक साथ आ जाएंगे, जितने स्क्रॉल स्पीड से अपन करते हैं उतने स्पीड से सब पेज आ जाएंगे क्या बाहर, आधे पेजेस प्रिंट होके आ जाएंगे? इज No. इट पॉसिबल? नहीं, नहीं, अभी ये स्लो हो जाएगा। अब इधर रेडी पिन काम में आते हैं, ठीक है। अभी ये कैसा था, सिंपल। नाउ लेट्स सपोज व्हेनेवर आई गिव अ प्रिंट कमांड, if I give a print command, now this is the process which is the faster one, it can just it can just take you through all the pages, जैसे scroll कर फटाफट लेके जाएगा, ठीक है। but if I want to print it on the printer, अब ये थोड़ा स्लो है, अब ये देखो काम कैसे करते हैं, ठीक है। now whenever I print command, जैसे मैं प्रिंट कमांड, अभी देखो कैसा होता है, ये रेडी है, ठीक है। इनिशियली ऐसा तो printer is not doing anything, so it will send a वन सेंड करते हैं, सिंपल सिंगल पिन है, एक तो 1 एंड 0 में बात करेंगे, ठीक है। वन मतलब क्या, ही विल से कि आई एम रेडी, तो मेरे को काम दे, मैं रेडी है, ठीक है। जैसे ही भाई प्रिंट कमांड, इसको प्रिंट कर समझो अभी, ये बोलेगा भाई रुक रुक रुक, इतना मेरे को नहीं जमेगा, आराम से दे, समझो, ठीक है। नाउ इट दिस विल गिव अ फर्स्ट पेज, दैट्स व्हाई वो दिखता है, पता है, फर्स्ट पेज प्रिंटिंग, सेकंड पेज प्रिंटिंग, थर्ड पेज प्रिंटिंग, ऐसा दिखता है ना वो स्क्रीन पे, गेटिंग इट? ठीक है, आपने देखा होगा मैंने जो प्रिंटिंग द थिंग्स, वो जस्ट से फर्स्ट पे मतलब 7 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 8 ऐसा पेजेस दिखते जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, व्हेनेवर आई गो प्रिंट कमांड, टीवी से अरे बाबा इतना मेरे को नहीं जमेगा एक साथ प्रिंट करने को। Now what this will do, now it will just send a first वाला पेज, मतलब फर्स्ट वाला पेज सेंड किया, जैसे फर्स्ट वाला पेज सेंड किया, इट जस्ट कीप ऑन प्रिंटिंग इट, ये रेडी को जीरो करेगा, ये बोलेगा अभी मैं रेडी नहीं है, दूसरा पेज मत भेज, पहले मुझे एक के साथ निपटने दे, ठीक है ठीक है। सो इट विल जस्ट प्रिंट दैट फर्स्ट वाला पेज एंड टिल देन इट विल जस्ट मेक दैट जीरो, दिस रेडी इज इक्वल टू जीरो, समझ, ठीक है। एंड जैसे वन वाला फर्स्ट वाला पेज रेडी होके आ गया, नाउ इट विल जस्ट मेक दिस रेडी सिग्नल 1, मतलब प्रिंट होके आ गया रेडी सिग्नल 1, नाउ इट विल सेंड के सेकंड वाला पेज पे, ठीक है। नाउ जैसे सेकंड वाला पेज भेजेगा प्रिंट को जाए, फिर से जीरो करेगा, जब तो सेकंड वाला पेज रेडी नहीं, प्रिंट नहीं होता, जैसे प्रिंट होगा फिर से रेडी को 1 करेगा, आर यू गेटिंग? एंड दिस इज हाउ इट विल जस्ट कम्युनिकेट एंड दे विल जस्ट दिस विल जस्ट प्रिंट द डेटा, इट विल जस्ट प्रिंट द थिंग फॉर यू, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सेड रेडी पिन इज एक्चुअली यूज्ड टू इंटरफेस स्लोअर पेरिफेरल विद द हाई स्पीड म्यूपिंग। अब आपको सेंटेंस समझा होगा, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, so that is what the use of ready pin, ओके। so just आपको जो नहीं समझा वो जस्ट पूछो, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट, एंड बाकी सब अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। आई होप दिस साइड इज क्लियर, या व्हाट इज द यूज ऑफ 80 to 8015? 80 to 8015 Address and या data. एड्रेस एंड डेटा लाइन है, ठीक है। बट दे आर मल्टीप्लेक्स, अभी मल्टीप्लेक्स समझते हैं क्या, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? Do- We are just saying 80 to 80, now the same pin will be used as an address as well as data. Hmm. Why do we go for a multiplexing of the pins? To reduce number of pins. Perfect, to reduce the number of pins, but उसके पीछे भी रूल रहते हैं, पता है, ऐसे कैसा भी अंधाधुंध तू मल्टीप्लेक्स नहीं कर सकता। Sir, IC use करते हैं ना, latch. लैच वो डीमल्टीप्लेक्स के लिए यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए नहीं यूज करते, ठीक है। या इसमें डिटेल में जाओगे, नहीं 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 नहीं, लेट्स सी 80 to 8015, now this is the multiplex sign, मतलब what, now the same pin will be shared for the address as well as data, but who will differentiate, who's going to differentiate, address कब जाएगा, data कब जाएगा, पता है कौन सा पिन है जो डिफरेंशिएट करता है? और एड्रेस पहले जाता है फिर डेटा। हाँ बट उसको बोलना मतलब समझेगा कैसे, मतलब लाइन जैसे सॉरी लाइन पे तो एक्चुअली मतलब we will have zeros and one only ना, how to understand whether the zeros and one is a part of address की part of data, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो भी zeros and one is it acting like a address or a data, कैसे समझ जाएगा? that will be decided by the ALE. ALE वो चीजें मतलब जो डिफरेंशिएट करते हैं, चल लेट मी टेल यू कैसे होता है, एक एग्जांपल देता तो समझेगा आपको, मेरे पास हर एक चीज के लिए एग्जांपल है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, लेट्स सी।
कैसे मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज टेक एग्जांपल ऑफ अवर कॉलेज केजेसी. You are in second year, right? ठीक है. Which are the subjects you do have in this semester? थर्ड सेम के लिए कौन सा सब्जेक्ट है? जैसे एमपीएमसी और बीएससी, कौन सा? बीईसी. अच्छा, और ईएलडी, अच्छा डीएलडी और ईएल। अच्छा चलो जैसे बस इतना काफी मिल. ठीक है. सो दिस आर द सब्जेक्ट वी आर हैविंग इन दिस सेमेस्टर. समझो, अभी समझो. ठीक है. नाउ लेट्स सपोज जस्ट एक एग्जांपल की, जस्ट अज्यूम कि लॉकडाउन वगैरह नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड वी आर जस्ट अटेंडिंग लेक्चर इन कॉलेज. जस्ट क्लासरूम में मस्त बैठ के आई एम जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन अ स्टेज एंड आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स ऑन बोर्ड एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग. ठीक है. नाउ लेट्स सी, नाउ दैट इज द सिचुएशन. ठीक है. अभी देखो मल्टीप्लेक्सिंग चीज क्या होती है. मल्टीप्लेक्सिंग फाइन. समझो मल्टीप्लेक्सिंग फंडा, समझो मल्टीप्लेक्सिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या रूल्स वगैरह होते हैं, थोड़ा समझो. ठीक है. अब ये सेकंड ईयर के आपके लेक्चर्स है. नाउ if I'm having like this one, do we have a separate classroom for the MPMC, separate classroom for the BEC, separate class for the DLD, separate class for the EL? ऐसे होता है क्या कॉलेज में? MPMC के लेक्चर को वो क्लासरूम में जाना पड़ेगा, BEC के लिए इधर, DLD के लिए इधर, EL के लिए इधर. ऐसा होता है क्या? No. No, we are just having only one classroom na, and in which all the lectures will be all the lectures will express. Are you getting it? Okay, so this is called the multiplexing. We are just using a one pin or a one classroom for all the lectures. One classroom for the all the lectures. समझ में? This is called the multiplexing. And what is happening because of this one? We are just saving on a space. अगर हर एक के लिए अगर एक एक क्लासरूम होता चलता मतलब अरे बेस्ट है. But the thing is that अपना जो 4 फ्लोर का बिल्डिंग है वो 16 फ्लोर का होता फिर. समझ में आ रहा है क्या? Are you getting it? ठीक है. अगर मैं मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करता पीसी मतलब पिन से इधर भी वैसे होता आईसी में. ठीक है. इफ आई डू नॉट डू मल्टीप्लेक्सिंग, जो 40 पिन का आईसी वो 60 पिन का हो जाएगा फिर. गेटिंग इट? उसका साइज बढ़ जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है. नाउ यस वी आर डूइंग मल्टीप्लेक्सिंग. नाउ वी जस्ट अंडरस्टूड कि यस मल्टीप्लेक्सिंग करना चाहिए बॉस, जगह बचता है. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट वी आर अप्लाइंग. ठीक है. नाउ इज इट हैपनिंग कि मतलब this is a one classroom which is used for the MPMC, BEC, DLD and EN. So is it happening so कि मतलब MPMC का मे भी क्लासरूम में, BEC के भी सर है, DLD के भी सर है, EN के भी जो भी मतलब जो भी फैकल्टी सब है एंड एक साथ सभी चालू कर रहे हैं बोर्ड पे. टाइम स्लॉट ऐसा नहीं है इससे सर. या इज इट हैपनिंग सो? नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. मतलब दो इट इज शेयर्ड बाय एवरीवन, दो दैट पर्टिकुलर क्लासरूम इज शेयर्ड बाय एवरीवन. ठीक है. बट वी विल नॉट गेट ऑल द थिंग्स टुगेदर एट अ टाइम. ठीक है. एंड टू अंडरस्टैंड व्हिच वन इज गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर मतलब अभी क्लासरूम में क्या चल रहा है, वी कैन जस्ट रेफर टू द टाइम टेबल. सो टाइम टेबल इज द वन व्हिच विल डीमल्टीप्लेक्स देम. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. वी जस्ट चेक करें टाइम टेबल. हाँ ये स्लॉट कौन सा, हाँ तो अब ये लेक्चर चालू रहेगा. ये स्लॉट कौन सा है तो अब ये लेक्चर चालू रहेगा. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. लाइकवाइज ये जो लाइन रहता है वो एड्रेस एंड डेटा दोनों यूज करते हैं. ठीक है. मल्टीप्लेक्स बिकॉज क्यों मल्टीप्लेक्स किया? बिकॉज इट इज 80 टू 8015 ना. मतलब वी आर जस्ट इंटरवल 16 लाइन. अगर मैं इंटरवल वो मल्टीप्लेक्स नहीं करता तो 16 पिन और बढ़ जाता मेरा यूपी में. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. गेटिंग इट? ठीक है. सो टू रिड्यूस द 16 पिन वी आर जस्ट कंबाइनिंग. ठीक है. एंड हाउ टू नो which one will go together मतलब which one is actually going on the line एड्रेस के लिए. अब इसके लिए ALE है. अब ALE क्या होता है? एक सिग्नल है, एक ही वायर है, तो उसमें 0 और 1 रहेगा. ठीक है. whenever it is a 1 on this line address will be there and when it is a 0 on this line data will be there. ठीक है. so this is the one which will demultiply. जैसे टाइम टेबल ने किया था. ठीक है. तो वैसे ALE करेगा जो मतलब डीमल्टीप्लेक्स करता है. ठीक है. इफ यू से डीमल्टीप्लेक्स इतना अच्छा है तो सब पिन डीमल्टीप्लेक्स मल्टीप्लेक्स ही कर दो ना. मल्टीप्लेक्सिंग अगर पिंस बचे तो सब भी निकल ना, बट नॉट पॉसिबल. क्यों? बिकॉज नाउ लेट्स सपोज केजेसी में सेकंड ईयर लाइकवाइज थर्ड ईयर भी तो है ना. आई यू गेटिंग इट? थर्ड ईयर के भी सब्जेक्ट्स है ना. ठीक है. नाउ कैन वी यूज द सेम क्लासरूम फॉर द सेकंड ईयर एंड द थर्ड ईयर? नो. नो. व्हाई नो? दोनों का बिकॉज इट सब्जेक्ट्स मे है. बी पॉसिबल. या बोलो बोलो बोलो. दोनों के सब्जेक्ट्स अलग है. सब्जेक्ट तो वैसे इधर भी अलग है. मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं दोस्तों? ठीक है. नाउ वी कैन नॉट मल्टीप्लेक्स थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर टुगेदर. मतलब वी कैन जस्ट हैव अ क्लासरूम फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर टुगेदर. व्हाई? बिकॉज जब 9:30 पे सेकंड ईयर का लेक्चर है तो थर्ड ईयर का भी 9:30 को लेक्चर हो सकता है ना. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. एंड इफ बोथ द लेक्चर्स आर देयर एट 9:30 देन यस वी कैन यूज अ सिंगल क्लासरूम फॉर बोथ. ठीक है. मतलब कैसे मतलब व्हाट डू आई मीन टू से इज दैट इफ टू पिंस आर इफ दे आर एक्टिंग एट अ टाइम. ठीक है. if it is possible that they will be carrying a data at a time then we cannot multiply this two pin together.
समझो, मैं मल्टीप्लिकेशन अगर अच्छा है तो सबको मैं मल्टीप्लेस करता, बट पॉसिबल नहीं है हर एक को करना, ठीक है। कंडीशन इज दैट दे मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझता है क्या? डू यू अंडरस्टैंड दिस टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? व्हाट डू यू मीन Yes, बाय sir. दिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? फटाफट। Common. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस व्हाट? अरे कम ऑन यार, Common sir. Common. कॉमन नहीं होते ना बॉस। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मींस अगर एक आएगा तो दूसरा पक्का नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। अगर दूसरा है तो पहला वाला पक्का नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। गेटिंग इट? ये प्रोबेबिलिटी का टर्म है, ठीक है। सो व्हेनेवर द टू पिन्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट पिन्स ओनली वी कैन मल्टीप्लाई। मतलब और एड्रेस एंड डेटा कभी साथ में नहीं चलते। जब एड्रेस देना रहेगा तो उस टाइम पे डेटा नहीं आता है, जब डेटा रहेगा तो उस टाइम पे एड्रेस नहीं आता। तो दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई ए एंड डी पिन। अच्छा, कैन वी मल्टीप्लाई वीसीसी एंड ग्राउंड? दोनों के लिए एक ही पिन रखेंगे, चलेगा क्या? नहीं सर। नहीं ना, No. बिकॉज़ मुझे वीसीसी भी चाहिए और ग्राउंड भी चाहिए एट अ टाइम, दोनों भी एट अ टाइम, दोनों भी पिन। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मल्टीप्लाई सेम। आर यू गेटिंग इट? मल्टीप्लिकेशन का फंडा किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द टू पिन्स व्हिच डू नॉट ऑकर एट द सेम टाइम, मतलब एक है तो दूसरा पक्का नहीं आएगा। इफ इट इज कैंडिडेट देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस सेम, ठीक है। मतलब मुझे पता है अगर एमपीएमसी का लेक्चर तो पक्का बीसी का लेक्चर नहीं होगा, तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बट सेकंड एंड थर्ड उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसका अगर 930 को लेक्चर है, इसका भी 930 को हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग का भी रूल है, कैसा भी नहीं कर सकते। फाइन। तो अभी कम टू द डायग्राम। मुझे अरे यार पिन डायग्राम का कॉन्सेप्ट इतना खत्म करना है। या सो 80 to 8015, नाउ वी नो दिस आर नॉट, दिस आर एक्चुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, साथ में नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट कंबाइन देम, ठीक है। सो एड्रेस सेंड का काम होता है एड्रेस देना, डेटा लेने का काम होता है डेटा लेना, खत्म। देन वी आर हैविंग द A19 to A16 बिकॉज़ वी आर हैविंग 20 एड्रेस सेंड, समझो। अब ये कैसे किए हैं? we are having 20 address line and 16 data line, ठीक है। So when I say 20 address line, it actually range from A0 to A19, and when I say the 16 data line, it range from D0 to D16. तो इन्होंने कैसे किया? A0 to A19 ना, they have divided like this one, A0 to sorry D0 to D15, 16 lines है ना, A0 to A15 and A16 to A19, खत्म ना, A0 to A19 हो, and we are having a D0 to D15 हो गया, तो इनको कंबाइन किया, so it has just made AD0 to AD15। अब बचा कौन? A16 to A19, अब उसके साथ कंबाइन किया स्टेटस लाइन, गेटिंग इट? A19 to A16 उसके साथ कंबाइन किया स्टेटस लाइन S6 to S3। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो दिस इज वंस अगेन एड्रेस लाइन, दिस इज द स्टेटस लाइन, दिस इज स्टेटस लाइन। अब इसका काम क्या है नोट्स में पढ़ लो, ठीक है। देन दिस इज द BHA बार ऑब्लिक S7, BHA बार अपने से देखा है, इट इज एक्चुअली यूज्ड टू सिलेक्ट द ऑड बैंक, ठीक है। एंड दिस इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम बार। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन? जो मैंने बोला ना दैट म्यूपी ऑपरेट इन टू मोड, तो डिसाइड कौन करेगा? ये पर्टिकुलर पिन डिसाइड करेगा, getting it? So whenever I just connect this particular pin, this is the input pin to the MUP, input output भी matter करता है बहुत, ठीक है। This is the input pin to the MUP. Whenever I connect this pin to the 5 volt, MUP will be acting in minimum mode. Whenever I just connect to the ground, it will be acting in maximum mode. अब इससे होता क्या है? ये 8 पिन का फंक्शनिंग चेंज हो जाता है। अगर वो मिनिमम मतलब 5 वोल्ट को कनेक्ट रहेगा तो ये फंक्शन करेंगे, एंड अगर ग्राउंड को कनेक्ट किया तो ये पिन एज दिस वन फंक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द पिन व्हिच विल डिसाइड कि it is working in minimum mode or maximum mode, and this is the read bar, means whenever we want to read a data we have to make this particular signal as a 0. Why 0? Because this is a bar signal, active low signal, ठीक है। understood? Any doubt? Any doubt? Yes or no? Sir, at A19 to A16 or S6 to S3 दिया हो, उसका हाँ काम, S6, हाँ उसका काम क्या है? किसका? S6 to S3 का? हाँ, वो एक्चुअली बोलते हैं कि मतलब कौन से सेगमेंट में म्यूपी काम कर रहा है। S6 to S3 जो पिंस है ना, इसका फंक्शनिंग है, दे विल जस्ट से मतलब इन विच सेगमेंट म्यूपी इज, कोर सेगमेंट में, डेटा सेगमेंट में, स्टैक सेगमेंट में। मतलब इफ यू वांट टू नो दैट देन यू कैन जस्ट गो विद दिस पर्टिकुलर पेज, इनका स्टेटस चेक कर सकते हो। गेटिंग इट? फाइन, अंडरस्टूड कि नॉट? yes sir. ओके, या सो वी हैव जस्ट सीन दिस पर्टिकुलर पेज, इतना भी तो खत्म हो गया। फाइन, नाउ नेक्स्ट बचा ये वाले पिंस, मिनिमम एंड मैक्सिमम के, ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अपन, ठीक है। तो आज अरे आज ज्यादा कुछ देखा ही नहीं अपन ने। We have seen only memory banking, memory segmentation and the pin diagram. Pin उस pin diagram ही पूरा नहीं, उसमें just the pins which are common in both the mode, ठीक है। ये तो बाकी है, चल ठीक है। You can see वो ये हर एक पिन का डिस्क्रिप्शन दिया, ये इधर है वो S6 to S3, इधर समझेगा आपको। S3 and S4 are for the using this one, S5 is for the IF flag के लिए, and S6 is always 0, getting it? ये सब इधर नोट से मिलेगा आपको।
Getting it? Okay. So that all information is given. We are done with the ये वाला part. As I told, we just divided into 3 parts. ये 3 section में pins which are common, then pins for the minimum mode, maximum mode. We have just done this section number 1. Okay. In next section, remind me to do this section 2 and section 3. Fine, we'll finish that, and after that, I will start with the minimum mode, maximum mode का diagram. Then उसके बाद addressing mode, then उसके बाद programming. बहुत कुछ करना है. ठीक है. Any doubt so far in this lecture? अभी तक का कुछ प्रॉब्लम? एनी डाउट? बहुत कुछ देखा है. इफ यू सी द बोर्ड क्या समझेगा आपको पता, बट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. एनी डाउट इन दिस एंटायर थिंग? कम ऑन, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स? Yes, sir. Yeah. Nimesh, have you understood? Nimish, sorry. Yes, sir. Shreyas Parmar. Shreyas, are you there? Shreyas Parmar. Saima.